of Jetpack Compose Camp, where we'll be learning about Android development from our speakers Ombir Panwar, Raman Verma, and Piyush Yadav. This event is so special to us since we're collaborating with GDSC, MIT, AOE, and we've had such an amazing time preparing this event for all of you. Without further ado, let us get started with the event. First up, let me invite the GDSC lead at BBP, Asmit Malkanawar. Yeah, hello everyone. Just a second, I'm going to present a slide here. So, is my screen visible? Yes, it is. Okay, so yeah, you all have joined for Compose Camp, right? But what is Compose Camp? So basically, Jetpack Compose is Android's modern toolkit that simplifies Android UI development. It is already used by thousands of app developers around the world. It's many tutorials are not yet available on the internet, but like this technology is just launched. So we GDSs are collaborating together and then organizing this event to teach you the Jetpack Compose. So you will be acquainted with the latest skills that's available. And if you're not already using it, it's a great time to start. So yeah, we are launching this 4-day series of Compose Camp event, and after day, you will also get tons of like swags, digital swags, then mentorship from our speakers, etc. Now, I would like Vatsal to tell you about speakers and head on with this Compose Camp. Yeah, thank you, Smith. So, guys, are you excited for this compose camp? So, first of all, show your excitement in chat box. I would like to see how much you are excited. So, share your favorite emojis in chat box. So, let me see. Also, share from where are you joined. Please type your cities in chat box. So, now let's start. What is the benefit to join this Android camp? So guys, we have collaborated with GDSC BVP and we are planning 4 days boot camp. So this is our first day. So if you join 4 days boot camp, so definitely you will get one certificate with verification, and also you will earn some digital badges and you will get some swags and surprises. But for that you have to join all 4 days because your attendance are monitored by our team. So you will be monitored and then only you will get swags and everything. So this is about benefit. Now we are having our speakers, those who are intern in Google. So we are having first speaker our. So first of all I would like to call our sir. Can we move further, Smith? Can you change the slide? Yeah. So this is the session overview. Yeah. So this is our speaker, Raman Verma sir, Omvir Pawar sir, and Piyush Yadav sir. So let me introduce first Raman Verma sir. So he is ADE intern and a developer intern in Google, and currently he is having good experience in Java. So if Raman Verma sir is there, so can we see Raman Verma sir? I guess, sir, if you are here, please raise your hand. And second speaker is Omvir Pawar, sir. So Omvir Pawar, sir, is also Android developer intern in Google, and he is Java developer, and he is from APJ Abdul Kalam College, Greater Noida. And we are having third speaker Piyush Yadav, sir. He is Android developer intern in Google, and he is also having much experience in Android and Jetpack Compose. So, guys, are you excited? So, let call our speakers. Sir, you are not visible to us. Can you raise your hand? Asmit, can you see?
He's Yeah. raised his hand. It's there. He has raised his hand, so Yeah, so sir, thanks for providing or taking this opportunity. And I would like to welcome on behalf of MIT AOE and BVP both. So give a big round of applause, like virtual applause to our both three speakers. I guess Raman Verma sir is there. Raman Verma sir, I guess he is joining. So now we'll hand over to session Omvir Pawar sir. Yes, sir, you may proceed. Thank you, Leads. Hello, everyone. Hope you all are fine. So, are you want to become the Android developer? If yes, so stay tuned with us. We will build a basic UI app later in this session. So, before starting up, my name is Omvi Pawar and I am a BTech student. I am currently working as an Android developer intern at Google Virtual Internship by Smart Interns. I am a certified Java developer from Microsoft and also a certified cloud leader by Google Cloud. And I am also working as a technical lead and Android Jam facilitator at GDSCDGI. I think it's all about my profile. So let's begin with the course. Okay, in today's lecture, we are covering Unit 1. Each unit consists of 3 pathways. We are covering that. Okay, so firstly, we have to build our developer profile. So I am sharing my screen. My screen is visible. Yes, yes, it is. Okay, thank you. So firstly, you have to write Google developer profile. Okay, Google developer profile. Okay. Now click on the first website and Sorry guys, I guess there is some network issue from Omvir Pawar sir, so he trying to join in session. So till then, you keep posted in chat box. We our team and we also reading all the chat box. If you are having some doubt or anything, you can post in chat. So we are reading all chats. And till then, you keep on following us on our social media handle. So you can take screenshots, photos, and you can tag us GDSC MIT AOE, GDSC BVP Pune. And then our social media team is checking out all your social medias. If you tag us, you will definitely get some surprises. So till then, doing that. So we are having 210 attendees till now. So guys, today is our first day, so we are facing some difficulties, but don't worry. From tomorrow, we will be having a smooth session. Whatever syllabus we have provided, all things will be covered. So don't have a chill pill, guys. So in chat box, some are from Punekar, some are from Bharati Vidyapit College of Engineering itself. So guys, instead of these colleges who are from, oh, some is from Muradabad, Uttar Pradesh. Oh, Tejas, yeah, cool.
So guys, please let us know from where are you. So like we are having crowd from every city, I guess. Oh, Avseri Pune. Oh, MIT AOE Pune. Okay, Jamshedpur. Oh, from Jamshedpur, Prabhat. So welcome you. MIT WPU, Avseri, Jamshedpur, Jamshedpurian. Oh wow, cool, super cool. And other is from BVP, MIT AOE. Those are from other than these colleges. You can also type your cities. Jamshedpur or Jammu. Who is from Jammu? Oh, Mrinanak Mahajan from Jammu. Oh, guys. So today we are having all crowd from Kashmir to Kanyakumari. Oh, we are having SUAS Indore. Oh, Patna, Bihar, Patna. Divyanand is from Patna. Prabhat Kumar is from Tata Nagar. Oh, guys. Oh, Sumen is from Kolkata. Rishikesh from Nashik. Hi, Rishikesh. We are having Muzaffarpur, Bihar, Pushkar. Wow, super cool. Guys, today is first day, so that's why we are getting some issues. So that's why Sumit Jha from Delhi. Oh, Monica from Vishakhapatnam. Hi, Monica. Keshav from Bareilly. Wow, Patna, Bihar, Pune. So guys, Chandigarh. Oh, Goa. Ronit is from Goa. तो चलते हैं फिर बीच घूमने हो कानपुर मानस इज फ्रॉम कानपुर आई एम ऑल्सो फ्रॉम कानपुर ओ मानस एंड लाहौर ओ गाइस चमन सिन्हा इज फ्रॉम राहुल guys are you telling your serious cities na don't do any like proxy something रुपेश सिंह फ्रॉम लंदन ओह ये तो पूरा ही झूठ है बिकॉज यू आर हैविंग एमआईटी ओई का पीआरएन नंबर कौन है ये रुपेश भाई झूठ मत बोलो then Sumit Kumar from Bagbera, then Shlok Poddar from Gujarat, Mars, oh someone is from Mars, oh guys Jupiter से भी है क्या कोई पुष्कर भाई मुजफ्फरपुर से गांधी मैदान रुपेश from Jupiter, I guess our speaker is joining guys. तो बीवीपी पुणे प्राउडली इंडियन हो भाई देशभक्ति ये कौन है अथर वजे अथर जोशी इज इंडियन नवसार so guys you can be a informal like this is our informal session but just follow the guidelines of GDSC because don't do any like mischievous activity our moderators are checking you. Yeah, your attendance will be counted. We are having everyone. If you join, we are also having timings like when you sign in, when you sign out. Our technical team is so strong. They are on back end, they are checking everything. So I guess we are having sir is back. Yes, sir, you proceed. Hello, sir. Omvir, sir. So, okay, sorry for that. Okay, now, okay, my skin visible. So when you just, hello, my skin is visible. Yes, sir. Yes, sir. Ek number. So so when you just click on the site, first link we have been covered. When you click to the Google developer profile, then firstly you have to just sign in and then click on the profile option. You have seen 3 dots here and just click on it and then you have seen profile option. Okay? So you have seen a lot of badges, right? You have a scene of lot of badges. So in these units which are covering that is for unit that is are in Compose Camp. So you have on a lot of badges which can you directly share in your social media handles like LinkedIn and many more. Okay, so let's begin. Okay, so Piyush, just share your screen.
Yeah, wait a second. My screen is visible. Yes, all right. Now, तो फर्स्टली व्हाट इज एंड्रॉइड डेवलपमेंट, हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट ही क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारा क्या कारण है एंड्रॉइड डेवलपर पढ़ने का। हम क्या कर रहे हैं इस लेक्चर में, क्या बनाएंगे, एप्स बनाएंगे। तो हमें ऐप बनाने का जो डेवलपमेंट होता है, जो ऐप बनाने का जो तरीका होता है, जो जरिया होता है, उसको एंड्रॉइड डेवलपमेंट बोलते हैं, मतलब ऐप को बनाना, ठीक है। और कैसी ऐप को बनाना है, एंड्रॉइड ऐप को, ठीक है। ऐप तो दो प्रकार की होती है, एक iOS भी ऐप होती है और एक वो भी। तो हम एंड्रॉइड जो डिवाइस होता है उसकी एप्लीकेशन आता है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर चल सके। तो एंड्रॉइड जो एप्स होती है वो काफी सारी लैंग्वेज में बनती है। तो बेसिकली हमें पता है, जैसे तो फ्लटर में भी बनती है, लेकिन हम बेसिकली दो ही पता है होती है मोस्टली केसेस में, कॉटलिन एंड जावा, ठीक है। फ्लटर भी होती है और बाकी भी होती है, ठीक है। तो कॉटलिन और जावा, तो हम क्या करते हैं, कॉटलिन और जावा में से कोई प्रीफर करता है, लेकिन हम इस जो सेशन है कंपोज कैंप, इसमें हम कॉटलिन पढ़ेंगे। ऐसा क्यों है कि हम कॉटलिन इसमें पढ़ेंगे? तो कॉटलिन क्या होती है, जो कॉटलिन का जो कोड होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू जावा, ठीक है। और जो क्या होता है, जो कॉटलिन जो लैंग्वेज होती है ये क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू जावा। अब देखो कैसे, मैंने कोई कोड लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अपने जो कंपाइलर आगे पीयूष बताया कैसे कंपाइलेशन वगैरह है। तो क्या होगा, जब मैंने कोई कोड लिखा हेलो वर्ल्ड, तो वो प्रिंट होगा, एकदम आउटपुट दिया उसने हेलो वर्ल्ड। तो जितना टाइम जावा का जो कंपाइलर होगा वो टाइम लेगा कोड होने में, जावा कोड को, उससे कम टाइम लेता है कॉटलिन का। तो कॉटलिन क्या होती है, फास्टर कंपाइल करता है एज कम्पेयर टू जावा, ठीक है। और बिल्कुल ये क्लियरिटी और सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। इसके अंदर जो कॉटलिन होते हैं इसके अंदर टूलिंग सपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं अगर तुम्हें जैसे तो एक क्वेश्चन मानो कि मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है 1 से 6 के बीच में, तो कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा। अगर मैं इसको बनाने के लिए फंक्शन का यूज करूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जावा के अंदर बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा कि कैसे कैसे वर्क करेगा। लेकिन सिर्फ कोटलिन के अंदर मेरे को एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, डॉट रैंडम, बस इतना फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो जो कोटलिन है वो बहुत ज्यादा क्या है, कंसाइज है एज कम्पेयर टू जावा। तो हम इस वजह से कोटलिन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू पीयूष फॉर फर्दरिंग। hello, my voice is audible. Am I audible? या ऑल राइट। Yeah. Hello, colleagues. Hope you all are good. In today's lecture, we will covering Unit 1, which consists of 3 pathways. So before starting up, myself, Piyush Yadav, currently pursuing my BTech from Dronacharya Group of Institutions. Currently, I am serving my knowledge as Android development intern at Google Virtual Internship Program by Smart Interns. I am also a certified Java developer from Microsoft, powered by NCS. I think it's all about me. Now let's come up on today's topic, which is pathway 1. Pathway 1 consists of Kotlin basics. So now I will start in Hindi so that the session can be interactive and you can understand my knowledge. So let's start the session. कंपोज कैंप 1 यूनिट 1 में पाथवे हम आज कवर करेंगे, जिसके अंदर हम एंड्रॉइड बेसिक्स को पढ़ाएंगे। एंड्रॉइड बेसिक्स पढ़ाएंगे कॉटलिन में। अब आपने सबने ये तो पढ़ लिया कॉटलिन क्यों प्रेफरेबल है एस जावा से, लेकिन हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि कॉटलिन कैसे यूज होती है, कॉटलिन फंक्शन वगैरह कैसे जनरेट होता है। तो आज हम सबसे पहले फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, फंक्शन क्या होता है, ठीक। अब हमें इसके लिए किसी भी लैंग्वेज को रन करने के लिए, कोड को रन करने के लिए हमें एक कंपाइलर चाहिए होता है। वो कंपाइलर इसमें होता है कॉटलिन प्लेग्राउंड, जो कि गूगल के द्वारा एक साइट बनाई गई है, जिसको हम क्रोम पे डायरेक्ट सर्च करेंगे। हम क्रोम पे लिखेंगे कॉटलिन प्लेग्राउंड और पहले ही लिंक जो शो होगा हमें उस पर क्लिक कर देना है, तो ये हमारा कॉटलिन प्लेग्राउंड खुल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम कॉटलिन के जो भी कोड लिखेंगे उसको हम साथ के साथ रन करके भी देख सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, ताकि आप भी साथ के साथ कोड कर सकें और सीख सकें, वरना रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी इसकी सेशन की। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। So now, starting up with our session. First of all, what is program? प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो भी हम कोड में लिखते हैं। जैसे हम प्रोग्राम में लिखते हैं कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक प्रोग्राम बन रहा है पूरा फंक्शन को इंक्लूड करके। लेकिन अब कोड क्या होता है?
कोड होती है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है उसकी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, होता है कोड। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ एक, जैसे यहाँ पे ये सब हटा देते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा प्रिंट एलन यूज करते हैं अपनी आउटपुट ले जाने के लिए स्क्रीन पे, ठीक, आउटपुट लेने के लिए। तो हमने लिखा यहाँ पे हेलो डेवलपर्स, ठीक। और दूसरी प्रिंट एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं, प्रिंट एलन माय नेम इज पीयूष। तो हम रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं तो इसमें क्या आ रहा है, पहले आ रहा है हेलो डेवलपर्स और फिर आ रहा है माय नेम इज पीयूष। इसका मतलब क्या है, ये स्टेप जो कंपाइलर है, जो कंपाइलर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम को। तो ये जो है हमारा कोड हो गया। अगर ऐसे इस कोड को बहुत सारे नंबर ऑफ लाइन्स का कोड लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक, समझ आया मेरी बात? नाउ कम अपॉन मेन फंक्शन। अब आपने सी में भी पढ़ा होगा जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन हर लैंग्वेज में सेम रहता है, ठीक। जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर सबसे पहले जब भी एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को तो मेन फंक्शन को ढूंढता है प्रोग्राम में कि मेन फंक्शन कहाँ पे है। जहाँ भी उसे मेन फंक्शन मिल जाएगा वहां से जो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से मेन फंक्शन हटा के कोई और फंक्शन लगा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने ऐड फंक्शन बना दिया, ये मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो मेन मेथड फाउंड इन प्रोजेक्ट। इसका मतलब हमारे कंपाइलर को मेन फंक्शन तो मिला ही नहीं, तो इसका मतलब क्या था, प्रोग्राम है हमारा वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे मेन फंक्शन लगाना जरूरी होता है। मेन फंक्शन से ही क्या कह रहा है, मेन फंक्शन जो है एंट्री पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोग्राम का। ठीक है, समझ आई बात? एम आई ऑडिबल? Yes sir, actually students can only put in chat, they are not access to unmute. ओके ओके ओके, नो इश्यूज। दरअसल मैं सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ। तो नाउ लेट्स कम अपॉन दी व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? आप सभी ने मैथ्स में तो फंक्शन पढ़े ही होंगे कि जो भी हमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है उसके लिए हम कोई भी जो हमारा प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वो फंक्शंस के अंदर ही होता है। मतलब फंक्शन यूज होते हैं तुम्हारा कोई भी टास्क परफॉर्म कराने के लिए, फंक्शन किसी भी उसमें प्रोग्राम में। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ये है एक फंक्शन, ठीक, मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं एक नया फंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको लोगों को ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पहला तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, पहला हमारे पास फंक्शन के लिए कीवर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं फन। पहले ये लगाना है, फिर आता है फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया अपना नाम से ही फंक्शन बना सकते हैं, जैसे मेरा नाम से फंक्शन बन गया। ठीक है, अभी मैं ऐड फंक्शन बना रहा हूँ, ऐड फंक्शन, और इसके आगे हम लगाते हैं ब्रैकेट्स। अभी ब्रैकेट्स क्या काम करते हैं, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनके अंदर तुम्हारी कोई भी वैल्यू जो होती है या उनको इनपुट कराते हैं, या फिर इसमें बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। सी वगैरह में भी ये सेम रहता था, उसमें भी हम आर्ग्यूमेंट ही इनपुट कराते थे। ठीक, ये तो हो गया फंक्शन का नेम। अब हमें फंक्शन के अंदर हमें क्या वर्क कराना है, उसके लिए हमें बॉडी भी चाहिए होगी है, जो कि हम लिखते हैं तुम्हारा करली ब्रेसेस से। करली ब्रेसेस लगाया, अब जो ये बॉडी बन गई है इसकी, इसके अंदर हम कोई भी कोड रन करेंगे, कोई भी कोड लिखेंगे तो हमारा प्रिंट होगा। जैसे अभी दिखाता हूँ, जैसे मेन फंक्शन का बनाता, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एलन यहाँ पे माय नेम इज, ठीक। अब मैं इसको रन करूंगा तो माय नेम इज पीयूष एग्जीक्यूट हो गया। मतलब फंक्शन के अंदर हमने कोई स्टेटमेंट डाल दी है प्रिंट एलन के अंदर। ये पता होगा आपको, हर लैंग्वेज में सेम रहता है। ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इनके अंदर हम स्ट्रिंग देते हैं, मतलब कोई भी स्टेटमेंट वगैरह देते हैं, टेक्स्ट इनपुट देते हैं मेनली। ठीक, फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ फंक्शंस का, ठीक।
मैं मान लेता हूँ ये एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स लिया मैंने, थोड़ी मेरी ड्राइंग ऐसी है, माउस से कर रहा हूँ तो वो भी है, तो इग्नोर दें। मैंने जैसे एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर ऐड फंक्शन बनाया, यहाँ से मैंने वैल्यू इनपुट ली, यहाँ से वैल्यू जो है मैं आउटपुट में मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ से ली वैल्यू इनपुट 10 और 20, ठीक। यहाँ पे आउटपुट में 30 मिलेगा, ठीक। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये हमने बना दिया फंक्शन किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर रूट स्क्वायर का। यहाँ से इनपुट ली 5 वैल्यू, यहाँ से आउटपुट मिल गई 25। तो जो ये मैंने बॉक्स बनाए हैं, जिसको हम बॉक्स बनाए हैं, ये होते हैं फंक्शंस जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ये वाला फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, 2 नंबर का एडिशन। ये वाला फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक, स्क्वायर। ये होता है फंक्शंस, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस के अंदर, फंक्शंस के बाद आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल मान लीजिए वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है, जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक। अब मैं जैसे दिखाता हूँ वैल्यू, जैसे एक कंटेनर है, नेम नाम का कंटेनर है, इसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू स्टोर कराई, जैसे अपना ही नेम स्टोर करा दिया, जैसे मैंने पीयूष स्टोर करा दिया इसके अंदर, तो वो हो गया वेरिएबल, कंटेनर की तरह होता है वेरिएबल। अब क्या है, कॉटलिन में हम वेरिएबल को 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है तुम्हारा वैल, और एक होता है तुम्हारा वैर। वैल क्या करता है, जैसे मैंने वैल ले लिया, वैल नेम, वेरिएबल का नाम, इज इक्वल्स टू, इसके अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर कराई, पीयूष, ठीक। अब आते हैं इस पे वैर। वैर में क्या ले लिया, वैर में ले लिया मैंने एज, इज इक्वल्स टू, एज क्या कर दी हमने 19, ठीक। अब प्रिंट टैलेंट के स्टेटमेंट लगाते हैं, माय नेम इज नेम एंड माय एज इज। अब एक बात बताइए, जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, रन बटन पे क्लिक करूंगा, तो नेम की जगह मेरा पीयूष प्रिंट होगा या सिर्फ नेम ही प्रिंट होगा, और एज की जगह एज प्रिंट होगी 19, या फिर एज ही प्रिंट होगी। एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, माई नेम इज नेम। अभी कंपाइलर क्यों कर रहा है, कंपाइलर इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने कंपाइलर को ये तो बताया ही नहीं कि नेम जो नाम का हमने ये जो वेरिएबल बनाया था नेम नाम का, इसमें जो है ये वेरिएबल है, ये तो इसको एक स्ट्रिंग की तरह ले रहा है, टेक्स्ट इनपुट की तरह ले रहा है। तो कॉटलिन में हम यूज करते हैं बताने के लिए कंपाइलर को ये वेरिएबल है कि नहीं, यूज करते हैं $साइन, ठीक। अब जैसे एज के आगे हमने $साइन लगा दिया, तो अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर नेम को क्या करेगा, एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। अब जैसे नेम यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, माई नेम इज पीयूष एंड माई एज इज 19। तो इसको वो क्या कर रहा है, एक वेरिएबल की तरह इनपुट ले रहा है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मेरे को अब क्या करना है, अब ये जो वेरिएबल मैंने नेम नाम का बनाया था, इसके अंदर मेरे को दूसरी वैल्यू को स्टोर करनी है, किसी और का नाम स्टोर करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा नेम इज इक्वल्स टू, मैंने किसी और का नाम स्टोर कर दिया गीता, ठीक। अब एज के अंदर भी ऐसे कर लेते हैं, एज इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने एज कर दी 21। मैंने दोबारा स्टेटमेंट प्रिंट वाली स्टेटमेंट लिखी दोबारा, मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। अब क्या बोलेगा, अब ये बोल रहा है कि जो वैल है, जो ये वैल है, वैल वेरिएबल है, तो वो रीअसाइन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, जो ये हमने नेम नाम का वेरिएबल बनाया है वैल टाइप का, तो वो जो है उसकी वैल्यू जो हमने एक बार डाल दी पीयूष, वेरिएबल के जो अंदर हमने वैल्यू एक बार डाल दी पीयूष, वो वही रहेगी, वो आगे जाके प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं हो सकती, फिक्स रहेगी, ठीक है। अगर मैं इसको वैल से कर देता हूँ वैर, अब देखते हैं क्या होता है, वैर से कर दिया वैल, तो ये क्या बता रहा है, माय नेम इज पीयूष, मतलब जो हमने पहले नेम में वैल्यू डाली थी पीयूष, पहले वो प्रिंट करेगा, और एज में पहले 19 प्रिंट करेगा, फिर हमने जो वैल्यू डाली थी गीता नेम में, फिर वो प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वैल है हमारा, वैल कीवर्ड है,
उसके अंदर हम एक बार जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर देते हैं वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती कभी प्रोग्राम में। लेकिन हम वेर यूज जब करते हैं, जब हमारे प्रोग्राम में हमें अलग अलग वेरिएबल सेव होता है लेकिन वैल्यू अलग अलग चाहिए होती है, तो हम वेर यूज करते हैं। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अब आते हैं डेटा टाइप्स। पहले बता देता हूँ डेटा टाइप्स कितने होते हैं, फिर आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। हमारे कोटलिन में तुम्हारे 5 तरीके के डेटा टाइप होते हैं। पहला होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या इनपुट लेता है? स्ट्रिंग तुम्हारा टेक्स्ट लेता है। टेक्स्ट मतलब जैसे ये है, ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट फॉर्मेट है इसका, तो वो लेता है, टेक्स्ट फॉर्मेट लेता है ये स्ट्रिंग। ठीक है, अब इंट क्या है? इंट मीन्स इंटीजर, इंटीजर नंबर्स को ही लेगा, इंटीजर नंबर को स्टोर करेगा। जैसे एज है, एज हमारा वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है? 19। 19 इज एन इंटीजर नंबर, सो इट विल स्टोर एन इंटीजर वैल्यू। Okay, now double will store decimal number. How double will store decimal number? Now this, अगर मैं इसको 19.5 कर देता हूँ तो क्या कहेगा ये कहेगा इंटीजर लिटरल जो है हमारा वो हमें डबल में चाहिए। मतलब हमें जो पहले कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये जो एज नाम का वेरिएबल है ये क्या स्टोर कर रहा है, ये डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो अभी मैं बता के दिखाऊंगा कैसे बताते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं कि फंक्शन इंट होना चाहिए या फ्लोट। ठीक, अब फ्लोट क्या होता है? फ्लोट में भी डेसिमल नंबर स्टोर होता है, लेकिन फ्लोट का जो साइज होता है नंबर स्टोर करने का वो थोड़ा कम होता है, और हमें इसमें हर नंबर के बाद जो भी नंबर हम स्टोर करा रहे हैं उसके बाद स्मॉल एफ लगाना पड़ता है। ठीक है, अब आता है बुलियन। बुलियन में क्या होता है? बुलियन होता है तुम्हारे ट्रू और फॉल्स। जब भी हम कोई कोटलिन में कंडीशन वगैरह लगाते हैं जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न में चाहिए होता है, तो वहां पे हम बुलियन यूज करते हैं। अब देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। अब जैसे हमें खुद ही डिफाइन करना है कि नेम के अंदर स्ट्रिंग स्टोर होना चाहिए, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये क्या है? ये है वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नाम। ठीक है, वेरिएबल के नाम के आगे हमने लगाया कोलन, कोलन, और इसके आगे वेरिएबल में कैसे वैल्यू स्टोर हो रही है? स्ट्रिंग टाइप की स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्ट्रिंग। ठीक, तो ये जो वेरिएबल होगा ये सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा और किसी टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। ठीक, अब जैसे एज है, एज को हमें क्या वैसी वैल्यू है? ये वैल्यू हमने पढ़ी है अभी डबल, डबल मीन्स डेसिमल नंबर्स में। ये देखिए डबल, डबल डेसिमल नंबर स्टोर करता है, तो हमने यहाँ पे लिखा डबल, यहाँ पे लिखेंगे डबल। ठीक, अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट सही है। हाँ जी, ये हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा फिलहाल के लिए। अब रन करते हैं। ये देखिए माय नेम इज पीयूष। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। ठीक, और माय एज में क्या है? एज में 19.5 है तो हमारे 19.5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए डेटा टाइप्स, और हम इन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब हम ऐसे ही, अब हम मेरे को क्या करना है? अब मेरे को मेन फंक्शन से जो हम वैल्यू ले रहे हैं, जैसे मेन फंक्शन में हमने वैल्यू दी, मैं इनको हटा देता हूँ। मेन फंक्शन में हमने एक ए वेरिएबल लिया, एक बी वेरिएबल लिया, और ए में हमने क्या स्टोर कर दिया? 10 स्टोर कर दिया, इनमें हमने 19 कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमें जो है मेन फंक्शन से जो वैल्यूज हैं ए और बी की, वो हमें किस में ट्रांसफर करनी है? बी ऐड वाले फंक्शन में। वो कैसे करेंगे? पहले मेन फंक्शन जो होगा ऐड फंक्शन को कॉल करेगा कि आओ भाई तुम कुछ काम तो करो। ऐड फंक्शन को कॉल करेगा कि ऐड फंक्शन आओ कुछ काम करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले फंक्शन का नेम, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट। ठीक, अब मैंने बोला था आपको शुरू में कि ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। इनपुट मतलब आर्ग्यूमेंट्स, हमें क्या इनपुट देना है। तो अब इसमें क्या है? ए और बी हमें क्या करने हैं? ट्रांसफर करने हैं ना ऐड वाले फंक्शन में। तो हम यहाँ पे इनपुट में देंगे ए और बी। तो कैसे देंगे? ए कॉमा बी, ये हमने दे दिया। अब क्या हुआ? ये जो ए और बी की वैल्यू है इसको स्टोर करने के लिए ऐड फंक्शन में हम दो वेरिएबल लेंगे एक्स और वाई। कैसे लेंगे? अब इसके अंदर भी तो कोई वैल्यू आनी चाहिए ना। ए से यहाँ, ए यहाँ तो मिल गया, लेकिन ए यहाँ कैसे मिलेगा? उसके लिए नया वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एक्स। अब एक्स डिक्लेयर करा, कोलन। मैंने बताया था आपको बताना पड़ता है इसके अंदर जब भी हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं कि किस टाइप का आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रिंग टाइप का है तुम्हारा, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो बताना पड़ता है। तो ये किस टाइप का है? 10 किस टाइप का है तुम्हारा? इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे लेंगे कैपिटल आई एन, कॉमा वाई। वाई भी किस टाइप का ले रहा है? वाई भी ले रहा है तुम्हारा इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हमने ये तो कर लिया। अब यहाँ पे
कैलकुलेशन परफॉर्म कराने के लिए हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल सम, जो कि सम करेगा इन दोनों नंबर्स का, ए और बी का सम करेगा, जो कि अब एक्स और वाई में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लिया एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब एक बात बताइए, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए मेन फंक्शन जो है आप है और ये जो ऐड फंक्शन है आपका फ्रेंड है। ठीक, अब मेन फंक्शन क्या करेगा, मेन फंक्शन आपने बोला अपने फ्रेंड को कि मेरे को 2 नंबर्स का एडिशन करके दो, अपने फ्रेंड से बोला 2 नंबर्स का एडिशन करके दो, मैं आपको नंबर देता हूँ। आपने उनको नंबर दिए 10 और 19। ठीक है, इसको मिल गए, आपके फ्रेंड को मिल गए, लेकिन ये आपको कोई वैल्यू तो रिटर्न कर ही नहीं रहा, सम की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हमें रिटर्न करवाने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम होता है रिटर्न। ये आपने सी में ही पढ़ा होगा। ठीक है, रिटर्न यूज करते हैं। तो रिटर्न हमें क्या करना है, रिटर्न हमें करना है सम। तो रिटर्न सम, और लेकिन हमने ये तो बताया ही नहीं कि जो हम सम रिटर्न कर रहे हैं वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो अब ध्यान दीजिए, एक्स किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, वाई किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, इनका सम किस टाइप का आएगा, फिर वो भी इंटीजर टाइप का आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब उसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, अब जो भी फंक्शन का नेम होता है और जो आर्ग्यूमेंट्स हमने दिए हैं उसे ब्रैकेट के बाहर कोलन लगाया, और किस टाइप का हम रिटर्न कर रहे हैं, सम, सम रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न तो हो जाएगा, लेकिन प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एलन स्टेटमेंट भी तो लगानी पड़ेगी। तो हम लगाते हैं प्रिंट एलन। अब जो भी फंक्शन का नाम है ऐड ब्रैकेट, जो भी हमने, मतलब यही पूरा सेम लिखना है, जो भी हमने आर्ग्यूमेंट दिए हैं, जैसे हमने इसमें आर्ग्यूमेंट दिए थे ए कॉमा बी, जो भी वैल्यू पास कराई है। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या हमारी वैल्यू सही आ गई। रन करके, हाँ 29 सही आ रही है। इसका मतलब क्या है, कंपाइलर ने पहले तो ऐड फंक्शन में ए और बी की वैल्यू डाल दी, ये जो ए और बी की वैल्यू है ये तुम्हारी ऐड फंक्शन में कर दी। अब जो ऐड फंक्शन में है, हमने सम वेरिएबल लिया था एक्स, ए की वैल्यू एक्स में चली गई, बी की वैल्यू किस में चली गई, वाई में। तो जो सम वेरिएबल एक्स प्लस वाई लिया था उसमें सम की वैल्यू हो गई, हमने सम को रिटर्न कर दिया। रिटर्न किस में करा, इंटीजर टाइप में, और यहाँ पे हमने उस फंक्शन को वैल्यू को प्रिंट करा दी जो रिटर्न होके आ रही थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गए रिटर्न टाइप, डाटा टाइप हो गए, रिटर्न फंक्शन हो गए। ठीक है, अब आते हैं, जैसे मैंने बताया था वेल कीवर्ड किस लिए यूज होता है, वेल कीवर्ड इसलिए यूज होता है जब भी हमें वैल्यू फिक्स करनी हो किसी वेरिएबल की, तो हम वैल्यू यूज करते हैं। वेर जब हम यूज करते हैं जब हमारी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी हो हमें प्रोग्राम में। ठीक है, टाइम टू टाइम। ये सब हो चुका है। वेरिएबल को डिफाइन करना, जैसे मैंने बताया था वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेमीकोलन लिया, स्ट्रिंग लगाया, किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ये सब। ठीक है, प्रोग्राम बनवा दिया। अब एक बात और, हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ऐड से हमारा ऐड वाले फंक्शन से जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको हम किसी नए वेरिएबल में स्टोर कर लें। जैसे मैंने सी वेरिएबल सी में स्टोर कर ली, और मैं एक सी वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल सी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का ही होगा, सम तो इंटीजर टाइप का ही है ना, इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी को प्रिंट करा दिया। ये भी एक तरीका है प्रिंट कराने का, सी को प्रिंट करा दिया। ये देखिए अब भी सही आ रहा है। इसका मतलब हम जब भी यूज करना चाहें, जहां भी फंक्शन को यूज करना चाहें वो कर सकते हैं बाय कॉलिंग द फंक्शन। अब एक बात और मैं लिख देता हूँ, कॉलिंग एंड कॉलिंग एंड। ठीक है, अरे आप सोच रहे होंगे ये क्या है, डबल स्लैश, ये होता है तुम्हारे कमेंट्स के लिए। जो भी कंपाइलर होता है वो इन कमेंट्स को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। जो भी इस कमेंट्स के आगे जो लाइन लिखी होती है, स्टेटमेंट लिखी होती है, उनको इग्नोर कर देता है। जैसे हम अभी रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ कॉलिंग ऐड फंक्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या, कंपाइलर इनको इग्नोर कर रहा है। कमेंट हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा कोड जो है उसको बाद में जब भी हम देखें तो उसको समझने में दिक्कत ना आए। हम हर जगह कमेंट यूज करते हैं, ठीक है, कोड को इजी बनाने के लिए। सो पाथवे जो वन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। पाथवे वन में इतना ही था, फंक्शंस, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स टाइप्स, डाटा टाइप्स कितने होते हैं, यही सब था।
So now from here Raman will continue. आपको रमन तो बताएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे डाउनलोड करते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो वर्क कैसे करते हैं. So now Raman continue. If you have any query, you can put your query in chat box. Yeah. If you have any query, please ask me. Hello, I am audible. Yeah, Raman, you are audible. Hello, I am audible. Yeah, you are audible. Yeah, Raman, continue. Yes, okay. So I will share the screen first. Okay, wait a second. So my screen is visible. Yeah, your screen is visible. Okay, so let's start. तो एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर ओपन करिए एंड उसके बाद सिंपली लिख दीजिए एंड्रॉइड स्टूडियो. ठीक है, सबसे पहली लिंक आ जाएगी आपकी जो developers.android.com की है. ये ऑफिशियल गूगल की ही लिंक है. आप इस पे नॉर्मल क्लिक करेंगे, सबसे फर्स्ट लिंक जो आपकी आएगी एंड आपको सबसे नहीं तो आप डाउनलोड ऑप्शंस पे आएंगे एंड आपको जिस आपका जो भी पीसी या जो भी आपके लैपटॉप की जो भी स्पेक्स है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको आपके जब ये सिस्टम में डाउनलोड जाएगा तो आपको सिंपली बस इसे इंस्टॉल होने में जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा ये आपसे थोड़ी बहुत चीजें डाउनलोड करने के लिए परमिशंस वगैरह मांगेगा एंड आपको परमिशंस वगैरह देनी है. ये आप पे का स्टूडियो आपका ओपन होगा तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा. आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे आपका ये एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च हो रहा है एंड ये अभी ओपन होएगा. ठीक है, तो आप जैसी बस बेसिक आपको बस वो आपसे ये पूछेगा, डिटेल्स वगैरह पूछेगा, आपको कहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है, कौन सी ड्राइव वगैरह में इंस्टॉल करना है. बस आपको सिंपल स्टेप नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल करना है एंड्रॉइड स्टूडियो. ठीक है, तो अब आपका ऐसे स्क्रीन आएगी आपके पास. ठीक है, अब आपको जैसे कोई भी अगर न्यू प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें. ठीक है, यहाँ पे बड़ी सारी एक्टिविटीज आ गई, नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी वगैरह. ठीक है, तो अभी आपके लिए ये सारी एक्टिविटी क्या है वो सब आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे. अभी हम एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं एंड यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास एक ये फेस इंटरफेस आ रहा है. ठीक है, तो ये हमसे चीजें पूछ रहा है. सबसे पहले पूछ रहा है नेम, आपकी एप्लीकेशन का नेम क्या होगा. ठीक है, हम जैसे इसके अंदर डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया फर्स्ट ऐप. ठीक है, हमारा फर्स्ट ऐप. ठीक है, ये हमारा ऐप का नाम हो गया. ठीक है, पैकेज नेम के अंदर हम डालते हैं वो वैल्यू जो एकदम यूनिक हो. जैसे आपने देखा होगा जैसे प्ले स्टोर के ऊपर इस जो भी ये पैकेज नेम होता है, सेम पैकेज नेम का ऐप रजिस्टर नहीं हो सकता. सिर्फ यूनिक पैकेज नेम के ही ऐप रजिस्टर होते हैं. इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी पैकेज नेम के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने अपना नाम लिख रखा है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, मैंने सिंपली बस अपना नाम लिख दिया. ठीक है, आप इसके अंदर ये पूरा ऊपर यूनिक होता है और ये यूनिक हमें इसलिए बनाना होता है कि ऐसा सेम जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे और रजिस्टर कोई ना कर दे. ठीक है, इसलिए हम इसे यूनिक बनाते हैं. एंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इस ऐप को आपको आपकी लोकेशन कहाँ पे आपको इस ऐप को स्टोर करा जावा कोटलिन, मैंने कोटलिन पे सिलेक्ट करा एंड इसने पूछा मिनिमम एसडीके क्या होती है. जैसे आपके हर सिस्टम के अंदर जो होता है सबके पास तो जैसे होता है कि बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन नहीं होते, लेकिन इसके अंदर जो होता है जैसे इसके अंदर देखिए सबके पास एंड्रॉइड 10 नहीं होता, 9 नहीं होता. कोई कोई पुराने एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं जिसके अंदर 6 होता है, एंड्रॉइड 6, एंड्रॉइड 7, एंड्रॉइड 8, ओरियो वगैरह.
तो हम एक मिनिमम एसडीके लेकर चलते हैं जो एंड्रॉइड 5 लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर जो है 98.8% डिवाइसेस के अंदर ये आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे फिनिश करते हैं। यह मिनिमम एसडीके इसलिए लेते हैं कि हमारा जो है बेसिक चलो। और वेट अ सेकेंड, ये आपका ग्रेडल बिल्ट हो रहा है। हमें जो है एम्प्टी एक्टिविटी नहीं, हमें एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी सारा जो प्रोसेस है वो कोटलिन के थ्रू चलेगा। तो जैसे मैंने अभी बस माई एप्लीकेशन के थ्रू ही कर रखा है, और ये सिर्फ कोटलिन के लिए अवेलेबल होती है, इसमें जावा यूज नहीं होती। एंड ये हमारा जो प्रोसेस है, जो भी हमारा कंपोज कैंप है, ये सारा प्रॉपर, इसके अंदर कोई भी एक्सएमएल फाइल वगैरह नहीं होती। सो इधर जो है आपका ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी आपकी फाइल्स है वो डाउनलोड हो रही है। जितनी भी आपकी जो भी फाइल्स इस ऐप के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ये एंड्रॉइड स्टूडियो अपने आप आपकी सारी फाइल से डाउनलोड कर लेगा। जो जो आपकी फाइल आपकी एप्लीकेशन को नीड्स होगी, वो सारी फाइल्स आपको डाउनलोड कर लेगा। इस ग्रेडल बिल्ड प्रोसेस के अंदर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपके सिस्टम और आपके इंटरनेट दोनों पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है और आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। तो ये जो एंड्रॉइड लगाते हैं, देन ये आपका सारा डेटा बहुत बहुत जल्दी खत्म कर देगा। तो मैं तो प्रेफर करूंगा, अगर आपके पास वाईफाई है तो उसके थ्रू आप कनेक्ट करके इसे चलाएं। तो अभी ये थोड़ी देर के अंदर आपका ग्रेडल बिल्ट हो जाएगा। जब तक हम मैं आपको मेन ये आपको मेन यहाँ पे देखो, आपके सामने लिखा है मेन एक्टिविटी डॉट केटी। केटी क्या होता है? ये एक्सटेंशन होती है कोटलिन फाइल की। ठीक है, तो हम कोई भी अगर फाइल को अगर यहाँ पे डालते हैं तो डॉट केटी करके डालते हैं, जिससे ये हमारी फाइल सेव होती है। एंड उसके अंदर आप ये देख रहे हैं क्लास। ठीक है, वो सब हम आपको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा कल का, उसके अंदर हम आपको क्लासेस वगैरह के बारे में बताएंगे। एंड इसके अंदर ये देखिए, एक ये फंक्शन है, ठीक है, सेट कॉन्टेक्स्ट करके। सेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जितनी भी चीजें लिखेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसके अंदर हम जितनी भी चीजें लिखेंगे वो आपको डिस्प्ले होगी, यूआई इंटरफेस के अंदर आपको विजिबल होगी। ठीक है, तो ये जो सेट कॉन्टेक्स्ट वाला फंक्शन है, यानी कॉन्टेक्स्ट मतलब आपकी जितनी भी यूआई होगी वो इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो जैसे ही मेरा ये ग्रेडल बिल्ट होता है, मैं आपको और चीजें बताता हूँ। एंड ये जो सबसे नीचे ये आ रहे हैं, ये आपके कंपोज फंक्शंस है। कंपोज फंक्शंस वगैरह आपको भी आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये फंक्शंस हम यूज करते हैं यूआई के लिए। वेट अ सेकेंड, जैसे ये होता है मैं आगे बताता हूँ। सो फर्दर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में आपको ओमवीर एक्सप्लेन करेंगे। सो आई विल हैंड ओवर टू ओमवीर फॉर द फर्दर। Okay, Raman. Wait a minute while I am sharing my screen. So wait. Piyush, can you share your screen? Yeah. Wait a minute. My screen is visible. Yes. No, Piyush ऊपर है। I think 72. 72. Okay. Yeah. 72.
एक ऊपर है पीयूष, कंपोज कैंप। ओके ओके, सो वेलकम बैक। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपोज कैंप आज हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, दो चीजें सीखी हैं, एक कॉटलिन के बारे में, एक तो कॉटलिन के बारे में सीखा है, और एक दूसरा क्या सीखा है हमने सीखा है कि हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, अब तक ये सीखा है। अब हम क्या बनाएंगे, एक बेसिक यूआई ऐप बनाएंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। ठीक है, सो जो बेसिक ऐप होगी वो क्या होगी, हमारी फर्स्ट ऐप होगी। ठीक है पीयूष, आगे पीयूष, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट जेटपैक। ओके, सो व्हाट इज जेटपैक कंपोज। ऐसे हम बार बार बोल रहे हैं कि बार बार हम जेटपैक कंपोज जो है बार बार यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बार बार जेटपैक कंपोज बोल रहे हैं कि हम कंपोज यूज कर रहे हैं। कंपोज, अब कंपोज है क्या, ये जेटपैक कंपोज है क्या। सो मॉडर्न टूलकिट फॉर बिल्डिंग नेटिव यूआई। अब मैंने ये बोल दिया। अब देखो यूआई क्या होता है, यूजर इंटरफेस। क्या होता है, यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस कैसे होता है, देखो तुमने अपना ना कभी कभी मोबाइल खोला होगा, तो मोबाइल के अंदर क्या होता है, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होगा, जहां पे तुम कॉल इन करते हो वो ऑप्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, जिस टाइम क्या होता है कि जिस टाइम क्या करते हैं, हम हमारा यूजर इंटरफेस होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस टाइम ऐप खोलते हैं वो कॉन्टैक्ट वाली, तो उसके अंदर क्या कहता है, ऐड टू कॉन्टैक्ट, और मेरा नंबर जो होता है वो आता है, और बहुत सारी जो चीजें होती है वो आती है। जैसे मैंने क्या बोला, कोई नंबर आएगा, मैंने किसी का नंबर सेव कर रखा है, जैसे मैंने पीयूष का नंबर सेव कर रखा है, तो मेरा नाम आएगा पीयूष, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, पीयूष का नाम बड़ा आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर क्या आएगा, जो उसका नंबर होगा वो छोटा आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करने के बाद अलग अलग कलर होंगे उसके अंदर। ठीक है, यही चीज यानी कि कोई और इमेज मैंने खोली, कोई पबजी जैसे गेम खेल लिया खोल लिया मैंने, तो उसके अंदर जो इंटरफेस आता है वो पहले इमेज आती है। तो जो ये चीजें आ रही है, इमेज आ रही है, कलर्स आ रहे हैं, और टेक्स्ट का फॉन्ट साइज जो हो रहा है चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये यूआई है। ठीक है, ये यूआई है, यूजर इंटरफेस है। ठीक है, तो इस इंटरफेस को, जो हमारे मोबाइल की जो पहली स्क्रीन खुलती है किसी भी ऐप की, तो उसको अच्छा बनाने के लिए हम जिस टूल किट का इस्तेमाल करते हैं उसको जेटपैक कंपोज बोलते हैं। गॉट इट। मैंने क्या बोला कि हम अपनी यूआई को अच्छा दिखाने के लिए जिस टूल किट का इस्तेमाल करते हैं उसको जेटपैक कंपोज बोलते हैं, सिंपली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो फर्स्ट आता है कंपोजेबल फंक्शंस। कंपोजेबल फंक्शन कुछ नहीं होता है, सम पार्ट होता है यूआई का, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, आराम से आगे जाके, जिस टाइम मैं एंड्रॉइड स्टोर खोलूंगा उस टाइम आराम से पढ़ूंगा। कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, तो देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो ठीक है, अब देखो पीयूष ने ये स्टार्टिंग में जब क्या बोलते हैं एंड्रॉइड स्टोर खुलता है, तो सबसे पहले फंक्शन आता है कंपोजेबल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जेटपैक कंपोज पढ़ रहे हैं, तो कंपोजेबल फंक्शन आएगा। तो ये कंपोजेबल कंपोजेबल लिख रहा है, ये होता क्या है, ये होता है एनोटेशन। क्या होता है, एनोटेशन, जो कि हमारे कंपोज कंपाइलर को बताता है, क्या बताता है, कि हमारे इंस्ट्रक्शंस को यूआई में कन्वर्ट कर दो। मैंने क्या बोला, ये क्या होता है, एनोटेशंस होता है, जो कि हमारे कंपोज कंपाइलर को बताता है कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उसको यूआई में कन्वर्ट कर दो। अब देखो बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा है हेलो नेम, नेम की जगह मेरा नाम एज्यूम कर लो, हेलो ओमवीर। ठीक है, तो हेलो ओमवीर, जब मैं इसको रन करूंगा, सपोज कि ये कहाँ पे रन हो रहा है, मेरी ऐप के अंदर रन होगा, तो आएगा हेलो ओमवीर ऐप के अंदर लिखा हुआ। मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिए, जो फंक्शन बनाया था मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिए कि मेरा नाम प्रिंट कर दो। इसने यूआई के अंदर, ऐप की जो इंटरफेस है उसके अंदर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, तो मेरे इंस्ट्रक्शन को यूआई में कन्वर्ट कर दिया। बस इसलिए हम किस लिए यूज कर रहे हैं, @कंपोजेबल का। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब आता है फंक्शन। क्या आता है, फंक्शन। अब ये बहुत अच्छी तरह से पीयूष ने बताया है, लेकिन अब देखो कॉटलिन क्या है, अच्छी लैंग्वेज है, इंजॉयफुल लैंग्वेज है। तो जो इसके डेवलपर है जेटब्रेन्स, उन्होंने इसका नाम बहुत, मतलब जो फंक्शन है वो डिक्लेयर बहुत अच्छे से रहेगा, फन, FUN फंक्शन। ठीक है, तो फन होता है फंक्शन। आगे जो इसका नाम है ग्रीटिंग, ये क्या है, ग्रीटिंग बताता है हमारे पास, क्या बताता है ग्रीटिंग की, क्या है, नेम है किसका, फंक्शन का नेम। और ये कैसा ले रहा है, ये आर्गुमेंट ले रहा है स्ट्रिंग टाइप का, आर्गुमेंट ले रहा है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया, टेक्स्ट दे रखा है। ये सब कुछ पूछना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। एक चीज और कर देता हूँ कि जो देखो स्ट्रिंग के आगे एक क्या है, स्पेस आ रखा है। स्ट्रिंग जो है नेम कोलन स्ट्रिंग, इसके आगे स्पेस आ रखा है, ये स्पेस देना अच्छी बात होती है कॉटलिन के अंदर। और फंक्शन के नीचे 4 स्पेस देने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, लेकिन देना अच्छा लगता है, फिर कोड अच्छा लगता है। कॉटलिन में कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अपनी ऐप के ऊपर। तो आज हम बनाएंगे पैट एडॉप्शन ऐप, यानी कि क्या करना है, हमें कोई पैट एडॉप्ट करना है। ठीक है, अब देखो मेरे को कोई ऐप बना रहा हूं मैं,
ऐप बनाऊंगा तो इसमें 2 लोग होंगे, ठीक है। एक तो एडोप्ट कराने वाला और एक एडोप्ट करने वाला। जैसे कि हम कोई सामान में खरीदते हैं OLX पे, तो 2 लोग होते हैं वहां पर, एक बेचने वाला और एक क्या खरीदने वाला, ठीक है। सेम थिंग यही है। तो जैसे हम क्या करें यहाँ पे, हमें क्या करें, जैसे OLX का सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे को एक मोबाइल बेचना है अपना, तो मैंने क्या किया, OLX पर डाला, तो मैं बेचने वाला हो गया, तो किसी ने उसको खरीद लिया। सपोज पीयूष ने उसको खरीद लिया, ठीक है। तो मैंने उसको बेचा और पीयूष ने खरीद लिया, तो 2 लोग होंगे, ठीक है। तो जब मैं उसको बेचूंगा मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, मोबाइल की फोटो दूंगा और बताऊंगा ये मोबाइल इस कंपनी का है, इसको इतने साल हो गए, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा उसकी। बिल्कुल बस सेम यही कॉन्सेप्ट हमें इस ऐप में लगाना है कि हमें अगर जो कोई डॉग को अडोप्ट करवाना है किसी को, हमको क्या करना पड़ेगा, 2 चीजें लेनी पड़ेगी। एक तो क्या लेना पड़ेगा, जो फोटो दिख रही है आपको पैट की, एक तो फोटो, पैट की फोटो, और दूसरा क्या होगा कि पैट का क्या होगा, पैट के बारे में क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। तो सिर्फ 2 चीजों के बारे में, फोटो एंड इन्फॉर्मेशन, समझिए, गॉट इट। तो मैं डायरेक्टली तुम्हें एंड्रॉइड स्टूडियो में लेके चलता हूँ। थैंक यू पीयूष, यू कैन क्लोज इट। नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। तो देखो हमें कुछ ऐसी ऐप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सुंदर है ना, बेसिक यूआई ऐप है जिसके अंदर मैं इमेज और टेक्स्ट लिखना आपको बताऊंगा, बेसिक ही है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको न्यू फाइल देखो, फर्स्टली अगर जो आपको कोई भी ऐसा एंड्रॉइड स्टोर खुल रहा है, तो फर्स्टली अगर जो आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है, फाइल पे जाओ, फिर न्यू प्रोजेक्ट, एंड देन चूज एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी, देन नेक्स्ट, एंड यू हैव टू गिव द ऐप नेम, दैट इज मैं देता हूँ डॉग एडॉप्शन ऐप, ठीक है। अब ये बहुत अच्छी पैकेज नेम रमन ने बता ही दिया है कि हर एक अलग होता है। क्यों अलग होता है, दूसरा बंदा आए, कोई डेवलपर दूसरा आए, वो हमारी ऐप को उठा के दोबारा ना डाल दे, तो इसमें सबका पैकेज नेम डिफरेंट होता है। सेव लोकेशन में एक बार इसी लोकेशन चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट में एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, ऐप 1, ठीक है। और मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज किसमें बना रहे हैं, कोटलिन में, क्योंकि कोटलिन में जेटपैक कंपोज यूज होता है, इस वजह से इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मिनिमम एसडीके, ठीक है। ये आप बहुत अच्छी तरह से उसने बताया कि हमारा जो जो क्या है क्या बोलते हैं, हमारा जो ऐप होगा वो 98.8 डिवाइसेस में चल जाए, इस वजह से हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इट टेक सम टाइम, वेट फॉर इट, ओके। सो देखो यहाँ पे अब क्या क्या चीजें आ गई, यहाँ पे ऊपर का तो रमन ने बता ही दिया कि ऑलरेडी आ ही जाता है सिंटेक्स वगैरह। अब देखो मैंने आपको बताया कंपोजेबल क्या होता है, एनोटेशंस होता है, जो किस में करता है हमारी Your voice is lagging. करता है, जो I'm audible. Yeah, you are audible, but your voice is lagging. Okay. Wait. हेलो गाइस, नॉट एन इशू एक्चुअली। अभी हम लोग सब टेक्निकल जुड़े तो टेक्निकल एरर आ सकते हैं, सो बी चिल पिल। तो गाइस सभी को मजा आ रहा है, लाइक कोई बोर हो रहा है क्या? I am audible. या Sorry for that. Okay. Screen is visible. Hello. My screen is visible. Yeah, your screen is visible. Okay. So we have just deleted, क्योंकि हमें क्या करना है, ये सब कुछ फंक्शन दोबारा बनाने हैं। बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, हम सब बताएंगे आपको, ठीक है। हम बैठे हैं ना अभी,
देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कंपोजेबल फंक्शन बनाएंगे, और कंपोजेबल फंक्शन बनाने के बाद क्या करेंगे इसके अंदर हमें मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, मेरे को ऐप बनानी है, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो इन्फॉर्मेशन की, जो पेट की इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे हम डॉगी के बारे में बता रहे हैं, सब हमें डॉग को बताना है, हमें डॉग को अडॉप्ट करवाना है किसी को, तो मुझे पहले डॉग की क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए और डॉग की फोटो चाहिए। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इस नाम से पेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने बनाया पेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पेट पेट इन्फॉर्मेशन बनाया मैंने। आई एम ऑडिबल? या ओके, तो देखो मैंने क्या बनाया, पहले एक फंक्शन बनाया जिसका नाम था पेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब पेट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, कि हमारे जो डॉग का, जैसे मैं डॉग के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे डॉग का नाम क्या है, और दूसरी चीज आनी चाहिए कि डॉग कितने साल का, डॉग को क्या पसंद है, यही चीज और क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या देता हूँ, टेस्ट दे देता हूँ इसके अंदर लिखने के लिए। अब देखो टेस्ट के अंदर मैं क्या दूंगा, डॉगी क्या बोल रहा है, डॉगी डॉगी बोल रहा है माई नेम इज डॉग, माई नेम इज डॉग। मेरा नाम डॉग नहीं है, मेरा जो डॉगी है वो बोल रहा है मेरा माई नेम इज डॉग। ठीक है, अब देख लेते हैं, मैंने पैट इन्फॉर्मेशन तो दे दिया, लेकिन अब देखो तुम सोच रहे हो कि प्रीव्यू वगैरह क्या है, प्रीव्यू कंपोजेबल डिफॉल्ट प्रीव्यू फंक्शन बना रखा है। जो हमारी स्क्रीन पे ये यहाँ पे जो शो होगा, देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो कोड स्प्लिट एंड डिजाइन, क्या दिख रहा होगा, कोड स्प्लिट एंड डिजाइन। इसमें कोड में खाली कोड आ जाएगा, जो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ वो स्प्लिट होके आ जाएगा, यानी कि समझ रहे हो, यहाँ पे कोड आ जाएगा, और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो यूआई में मेरी जो ऐप होगी उसमें कैसा दिखेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा ये सिर्फ डिजाइन दिखेगा मेरे को। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिया नहीं, इसमें तो कुछ आया नहीं है, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर कि मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा फंक्शन कि यहाँ पे शो हो जाए। तो जो ये शो होगा ना, ये प्रीव्यू के अंदर होता है, अगर मैं प्रीव्यू को ही हटा दूंगा तो कुछ भी यूआई में शो नहीं होगा, चाहे मैं कुछ ही लिख लूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फंक्शन देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे बताऊंगा भी क्यों दे रहे हैं हम। ओके, अब देखो वैसे बता ही देता हूँ, चलो हमें यहाँ पे फंक्शन पता क्यों दे रहे हैं, हमारी जो स्टार्ट होता है वो क्या, कहाँ से होता है, स्टार्ट ऑन क्रिएट से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारा जो यहाँ से फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है ऑन क्रिएट से। तो पहले सबसे पहले इसको रीड करे, पैट इन्फॉर्मेशन को रीड करे। Yes, sir, you are not audible. Is it only with me or everyone? Yeah, guys. So, guys, actually, some weather issue is there where our speaker is there. So that's why it's happening. Not an issue. Not an issue. You be there. Till then, we can do like one activity. So, Ruchika Kulkarni, your hand is raised. You want to say something? You can put it in chat. Or someone has asked in group what is Jetpack. So guys, Jetpack is a library. Jetpack Compose is completely a library which is developed in Kotlin and used in Kotlin. So like that. So now we play one activity. Your videos are off. We can't see whether you will do or not. So uh, no. Actually, just 2-3 points are left. Gyan Thakur. Why are you feeling appetite? भूख लगा है क्या? आज कुछ अच्छा बना खाने में? I guess sir is back. Yeah, you will Yes, get yes. certificate, that is verified certificate. So you have to join all 4 days. चारों दिन join करेंगे तो मिलेगा। Yes sir, you continue. ओके ओके, सो देखो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया,
अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या दिया, एक फंक्शन बनाया पैट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे को पैट की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। और क्या चाहिए था बस, और एक इमेज चाहिए। सिर्फ मैंने एक फंक्शन बनाया कि पैट इन्फॉर्मेशन के नाम से, ठीक है। और ये कंफर्टेबल ये चला है हमारी इंस्ट्रक्शन को, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको यूआई में कन्वर्ट कर दे। देखो सेम ही हो रहा है, मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया ये, और ये इसने यूआई में कन्वर्ट कर दे। इधर दिख रहा है ना, माई स्क्रीन इज विजिबल। हाँ यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, विजिबल। ओके ओके। सो देखो, माई नेम इज डॉग। यस सर। आई एम ऑडिबल? ओके या नाउ यू आर, या। ओके ओके। अब देखो क्या होता है, मैंने इन्फॉर्मेशन दी माई नेम इज डॉग, बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ। मैंने अब तक जो जो बताया वो देख लो। मैंने एक फंक्शन बनाया पैट इन्फॉर्मेशन के नाम से, उसके बाद उसके अंदर एक टेस्ट दिया माई नेम इज डॉग, ठीक है। ये टेस्ट दिया। अब मुझे क्या देना है कि डॉग की और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। डॉग क्या बोल रहा है, आई एम 3 year old एंड, और क्या बोल रहा है वो, और क्या बोल रहा है, एंड आई लाइक टू बार्क। आई एम 3 year old एंड आई लाइक टू बार्क, उसने डॉगी है जो वो बोल रहा है। अगर मैं इसको देखो रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या होता है। रिफ्रेश करने के बाद देखो, एक मिनट, देखो ये ओवरलैप हो गया। क्या हो गया, ये ओवरलैप हो गया। अब क्या हुआ, मैंने देखो सेम तो वही बनाया, दो टेस्ट दिए, दोनों ये क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कॉलम। अब देखो हम कॉलम ही क्यों यूज कर रहे हैं, रो क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। अब देखो ये 3 एलिमेंट होते हैं, एक बॉक्स, एक रो, एक कॉलम। अगर मेरे को किसी वर्ड्स को या एलिमेंट को, कोई भी वर्ड है उसको हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है, हॉरिजॉन्टली लगाना है, तो हम यूज करते हैं रो का। अगर मेरे को दो वर्ड्स को वर्टिकली लगाना है, कोई दो सेंटेंस है, वर्ड्स है, उनको वर्टिकली अरेंज करना है, तो मैं किसका यूज करता हूँ, कॉलम का। सिंपली थिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, कॉलम, क्योंकि मेरे को वर्ड है ना वर्टिकली चाहिए, एक ऊपर जो आना चाहिए वो आना चाहिए माय नेम इज डॉग, और नीचे आना चाहिए आई एम 3 year old एंड आई लाइक टू बार्क, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सिंपली से, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या एक फंक्शन लगा दूंगा कॉलम, ठीक है। फंक्शन लगाया और इसके अंदर मुझे कुछ देना नहीं है। अब देखो मैं इसके अंदर ये डाल देता हूँ, कंट्रोल एक्स, कुछ नहीं किया मैंने। अब मैं एक बार कल जिसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो क्या होता है। वेट अ मिनट, देखो क्या हुआ, ये एक के ऊपर एक आ गया, वर्टिकली अरेंज हो गए। समझ गए ना कॉलम कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं रो लगाता तो ये कैसे हो जाते, हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाते। और बॉक्स तो मैं आगे बताऊंगा, ये 3 एलिमेंट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद अब देखो मैंने दो दे दिया, इन्फॉर्मेशन तो बता दी। अब किस चीज की जरूरत है, इसके अंदर इमेज की जरूरत है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इमेज लगानी पड़ेगी। तो इमेज लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा। कैसा फंक्शन, कंपोजेबल फंक्शन, ठीक है। नोटेशन लगाया मैंने इसका, और क्या लिखा, फंक्शन। और फंक्शन का नाम दिया मैंने, फंक्शन का क्या नाम दे, पैट इमेज। क्या नाम दे, पैट इमेज। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, yes, visible. हेलो, यस सर, यस सर। देखो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया पैट इमेज। अब एक चीज नोटिस करना, मैंने यहाँ पे पैट इंफॉर्मेशन लिखा था, तो पैट इंफॉर्मेशन है, पैट का पी बड़ा था और इंफॉर्मेशन का आई बड़ा था। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया पैट इमेज, उसका भी पी बड़ा था और आई बड़ा था। ऐसे क्यों, क्योंकि जो कॉटलिन होती है वो करती है पास्कल केस कन्वेंशन का यूज। जब भी हम कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसका फर्स्ट जो वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल रहता है, तो फर्स्ट वाला। और जितने मतलब बीच में न्यू न्यू वर्ड आते हैं, जैसे पैट एक अलग वर्ड है तो उसका पी बड़ा होगा, इन्फॉर्मेशन का आई बड़ा होगा। तो मतलब ये समझ रहे हो ना, पैट इसे बोलते हैं पास्कल केस कन्वेंशन, ठीक है, यूज करते हैं। अब मेरे को क्या लगाना है, इमेज लगानी है, इमेज लगानी पड़ेगी हमें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल, मैं इमेज को लोड करवा लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया इमेज के नाम से, और इसमें मैंने लोड करवाया
इमेज। अब देखो एक यहाँ पे एक फंक्शन होता है पेंटर रिसोर्स। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये करता है हमारे, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, ये क्या करता है, ये हमारी इमेज को लोड करवाता है। क्या करवाता है, हमारी इमेज को लोड। इससे क्या हुआ, अगर जो इमेज यहाँ पे आएगी वो कहाँ आ जाएगी, इमेज के अंदर, जो हमारे वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके अंदर आ जाएगी। प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ लोड कराएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना इस बात को। अब एक मिनट देखो, वेट, अब देखो ध्यान से, जो मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर देखो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा रिसोर्स मैनेजर, दिख रहा है ना। अब रिसोर्स मैनेजर जो होगा उसके बाद में ऊपर दिख रहा होगा आपको प्लस आइकन, जो जस्ट क्लिक ऑन इट। सो यू हैव सीन इंपोर्ट ड्राइवेबल्स, जस्ट क्लिक ऑन इट। सो प्लीज डाउनलोड एनी डॉग इमेज फ्रॉम गूगल और समवेयर एल्स यू वांट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डॉग की इमेज पहले से ही रख रखी है, तो मैं उसको यहाँ से इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ पे हो गया, एक मिनट मैं इसके ले लेता हूँ डेंसिटी। ये लो ना लो, मैं तो ऐसे ही ले रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है ऐसे ही। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली तुम डायरेक्टली इंपोर्ट पे क्लिक करके भी इंपोर्ट हो सकती है। ठीक है, ओके। मेरी जो क्या बोलते हैं वीडियो है वो सही दिख रही है ना, विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ हाँ यस सर, एकदम सही। अच्छा, अब जूम हो रही है ना, देखो। तो मैं क्या बता रहा था, मैंने क्या किया, यहाँ पे इमेज को लोड करा लिया। अब देखो ध्यान से देखना, इमेज अब कहाँ आई होगी, इमेज आई होगी रिसोर्स। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, इन फाइलों को बंद कर देता हूँ एक मिनट। रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर ड्रॉएबल्स और ड्रॉएबल्स के अंदर इमेज। बिल्कुल ध्यान से देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर ड्रॉएबल्स, ड्रॉएबल्स के अंदर इमेज। दोबारा, रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर क्या आया, रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर ड्रॉएबल, ड्रॉएबल के अंदर इमेज। तो आर डॉट रिसोर्स है, रिसोर्स के अंदर क्या है, ड्रॉएबल्स फोल्डर है, और ड्रॉएबल्स फोल्डर के अंदर क्या है, हमारी इमेज है। ठीक है, सिंपली देखो मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल वही चीज करी है। तो मैंने यहाँ पे आर लिखा है, तो रिसोर्स मैंने आर है, तो ये आर क्लास होती है जिसके अंदर हमारी सारी इमेज जो होती है वो लोड होती है। ठीक है, और जो रिसोर्स मैनेजर होता है इसके अंदर क्या होता है, हम किसी भी जो हमारी इमेज है उसको क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना, रिसोर्स मैनेजर का काम होता है इंपोर्ट कराना और क्रिएट करना और मैनेज करना। ठीक है, पेंट रिसोर्स का काम होता है लोड करना इमेज को, और आर जो मैंने लिखा है रिसोर्स के डिनोट करता है, जो आर क्लास होती है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। आप देख लो बिल्कुल, डॉग मैंने इमेज यहाँ पे लगा दी। अब देखो इमेज जो पेंटर रिसोर्स ने क्या की, लोड कराई और इसके अंदर इमेज के डाल दी, लेकिन इमेज की जो अंदर डाली है तो मैंने कहीं अब तक बताया नहीं कि इमेज आएगी कहाँ से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं कि इमेज मेरी क्या हो जाए, देखो अगर जो मैं इसको हटा ही देता हूँ, एक मिनट देखो मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, देखो ये शो ही नहीं होगा, एक ठीक है, ये शो ही नहीं होगी। देखो ये शो पता क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसको जो जहां भी इसको लोड कराई है यहाँ पर, ये तो शो ही नहीं हुई यहाँ पर। मैंने इमेज के अंदर इसको लगाया है, ये तो शो ही नहीं हुआ यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इमेज को डालूंगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इमेज एक के लगाया जिससे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन का यूज किया इमेज का। ठीक है, अब मेरे को पेंटर के अंदर क्या आना चाहिए, इमेज आई होगी, तो मेरे को बताना पड़ेगा पेंटर के अंदर क्या आई, इमेज आई। तो मैं यहाँ पे इमेज लगा, जो ये इमेज थी वो पेंटर के अंदर आई। कंटेंट डिस्क्रिप्शन आप नल ले सकते हैं कि इमेज के साथ उसका क्या कंटेंट होगा। ठीक है, इसको नल नहीं रखते हैं अभी, बताते हैं इसको बाद में, क्योंकि नेक्स्ट जो है इसके अंदर इसको देना पड़ेगा। आप कुछ भी ले लो, शो तो होगा ही नहीं, लेकिन आगे इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे सेकंड सेशन में, कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी तक यही बिल्कुल ध्यान रखो, सिर्फ मैंने अब तक सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब की है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इमेज पेंटर रिसोर्स क्यों कर रहे हैं, आर डॉट ड्राइवेबल। देखो हर चीज बिल्कुल इजीली है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको अब लोड कराता हूँ, देखो ध्यान से देखना। अब देखो क्या हुआ, इमेज तो आ गई, लेकिन क्या हुआ, जो हमारी क्या थी कैश थे वो क्या हो गए, वो गायब हो गए। क्या हो गया, क्या हो गया, हमारे जो टेस्ट थे वो गायब हो गए। अब उनको तो लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उनको तो लाना पड़ेगा। तो मैं उनको लाता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं।
अब वो फंक्शन हम क्यों बना रहे हैं, देखो अब मेरे को पहले ये भी तो डिस्क्राइब करना है कि इमेज ऊपर आए, जो मेरा ऐप था, देखो अगर मैं दिखाऊं कि मेरा जो टेक्स्ट है ये ऊपर आ रहा है या मेरी इमेज ऊपर आ रही है, तो मेरे को ये दोनों तो बताने ही पड़ेंगे कि पहले ये हमारी इंफॉर्मेशन ऊपर आए या फिर हमारी इमेज ऊपर आए। तो मैं यही चीज आपको उसके लिए बताऊंगा। एक मिनट, आपको वैसे खुद समझ में आएगा मैं क्यों बना रहा हूँ। एक मिनट, इजिली देखो कंपोजर में मैंने फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने लिखा फंक्शन और फंक्शन नाम दिया अडोप्ट, ठीक है। और फंक्शन को मैंने बनाने के बाद हो गया। अब देखो मैंने इसके अंदर दो चीजें बताई, मैंने दिया इसके अंदर पैट इंफॉर्मेशन, एक मिनट, पैट के बाद हमें क्या देना है, पैट इमेज, सॉरी पैट इमेज देंगे पहले हम, और फिर हम देंगे पैट इंफॉर्मेशन। अब देखो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, देखो एक मिनट, गिव मी 1 मिनट, यू विल नो एवरीथिंग, ठीक है। ओके अडोप्ट, देखो मैंने क्या किया, मैंने इन सबको हटाया क्योंकि मैंने इन फंक्शन को कहाँ डिक्लेयर कर दिया, अडोप्ट के अंदर, तो मैं इस वजह से यहाँ पे लगा रहा हूँ। एक मिनट बस, अभी पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैंने एक फंक्शन बनाया अडोप्ट नाम के, जिसके अंदर मैंने इमेज डाल दी, और एक मिनट मैंने इन्फॉर्मेशन डालेगी यहाँ पर, एट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने इमेज डाल दी और क्या डाल दिया, इन्फॉर्मेशन। अब मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो क्या है, मेरा जो फोटो दिख रही है, मुझे इमेज नहीं दिख रही, तो मेरे को उसे दिखवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉक्स फंक्शन का यूज करता हूँ, वो बॉक्स एलिमेंट का यूज करता हूँ, सॉरी। तो बॉक्स एलिमेंट क्या करता है, ठीक है, बॉक्स एलिमेंट क्या होता है, क्या करता है, देखो मुझे क्या चाहिए, इमेज के ऊपर क्या हो जाए, टेक्स्ट आ जाए मेरा, ये तो नीचे दब गया ना, हमारा जो टेक्स्ट है वो दब गया इसके नीचे, मेरे को इमेज के ऊपर चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे बॉक्स में, देखो बिल्कुल सीधा प्रैक्टिकली देखना क्या हो रहा है। देखो अब मैंने क्या किया, बॉक्स था, बॉक्स के अंदर इमेज डाल दिया, और इमेज के ऊपर क्या जाना चाहिए, इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। मैंने क्या बोला, बॉक्स लगाया कि पहले इमेज आए और इमेज के ऊपर क्या छप जाए, इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अब देखो मैं एक बार कर देता हूँ रिफ्रेश, एक मिनट, देखो अब क्या हुआ, मेरी जो इमेज है उसके ऊपर क्या आ गया, इमेज के ऊपर क्या आ गया, इमेज के ऊपर क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया, जो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी वो क्या आ गई इसके ऊपर। तो ऐसे हम बॉक्स फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो चाहिए कि मोबाइल में फिट हो, लेकिन मोबाइल में तो फिट होगी नहीं ऐसे, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन क्या आता है, जिससे और ये क्या करता है, ये हमें पैडिंग जब हम देते हैं, यानी कि विड्थ और हाइट कैसे देनी है, ठीक है, कि इमेज की विड्थ कितनी होगी, हाइट कितना होगा, तो ये सब कुछ डिसाइड करता है, तो क्या चाहे करता है मॉडिफायर, तो हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो मैं एक फायर यहाँ पे करते हैं मॉडिफायर, वेट अ मिनट, कहाँ पे यूज करते हैं हम, एक मिनट, देखो मॉडिफायर डॉट मॉडिफायर। अब मेरे को क्या देना है, मैंने मॉडिफायर दिया, अब मुझे को पैडिंग दूंगा, मैं इसको क्या दूंगा, पैडिंग। पैडिंग से पहले एक काम करते हैं, पैडिंग से पहले इसको दे लेते हैं फुल मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट तक चला जाए। एक मिनट, मॉडिफायर डॉट फुल मैक्सिमम हाइट, एक मिनट, देखो फुल मैक्सिमम हाइट दे दी मैंने इसको, और क्या दे दिया, फुल मैक्सिमम विड्थ, कि विड्थ भी मैक्सिमम हो जाए और क्या हाइट भी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इन दोनों से बिल्कुल समझ में आया, यानी कि हाइट जो होगी वो ऐसे मैक्सिमम हो जाएगी और वो विड्थ ऐसे। अब देखो क्या हुआ, जो इमेज है वो क्या हो गई, अपने मैक्सिमम साइज में आ गई। जो इमेज है, मतलब जो मैंने किया, मैंने डिफॉल्ट प्रीव्यू को वो किया, ठीक है। और लेकिन अगर मैं इमेज को बड़ा करूंगा तो इमेज खिंच जाएगी, और खिंच जाएगी तो खींचने से बचाने के लिए, ये खींच ना जाए, तो हम एक यूज करते हैं कंटेंट स्केल। क्या यूज करते हैं, कंटेंट स्केल। ये खींचने के बाद क्या ना हो जाए, अजीब सी गंदी लगेगी ना फिर, क्योंकि हमें तो अच्छी बनानी है, हम जेट पैक इस वजह से यूज कर रहे हैं कि हमारी अच्छी क्या बने, ऐप बने। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, और हम इसमें मैंने पैडिंग भी दे देता हूँ, एक मिनट, इसमें मैं पैडिंग भी दे देता हूँ, मॉडिफायर डॉट पैडिंग। मैंने पैडिंग दी, इसके अंदर पैडिंग कितनी दूं मैं, दे लेते हैं 180 की। अब देखो डीपी क्या है, क्या बोलते हैं, डीपी क्या होता है,
डीपी। अगर जो मेरे को क्या पड़ती है, जैसे हम क्या करते हैं, हम कोई भी क्या बोलते हैं, कुछ भी हमें मीजर करना हो, जैसे मुझे मीजर करना है कि मेरी हाइट कितनी है, तो हम फुट में मीजर करते हैं, या कुछ कुछ चीजें हम सेंटीमीटर में करते हैं, मीटर में मीजर करते हैं, ठीक है। जैसे रोड को है तो कितने सेंटीमीटर, इतने, फिर किलोमीटर में मीजर करते हैं। तो ऐसे ही जो हाइट होती है हमारी यूआई की, वो डीपी में मीजर होती है। जो विड्थ होगी और हाइट होगी वो किस में मीजर होती है, किसमें मीजर होती है, वो होती है डीपी में। तो मेरे को इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जिससे आ जाए। देखो मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया, डायरेक्टली इंपोर्ट हो गया। ये देखो मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये इतनी सारी चीजें इंपोर्ट कर रखी है। देखो ये डीपी वाली कहाँ पर है, यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। ये लाइब्रेरी है जो यहाँ पर इंपोर्ट हो गई, ठीक है। अब देखो ये भी हो गया। अब एक बार देख लेते हैं कैसा हुआ है। एक मिनट वेट अ मिनट। देखो ये पता है ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने क्या दिया, मैंने इमेज की अब तक क्या करी, मॉडिफिकेशन नहीं करी, मैंने खाली इमेज की मॉडिफिकेशन कर दी। तो मेरे को उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को इन्फॉर्मेशन में भी क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो मैं इन्फॉर्मेशन में भी क्या करूंगा, मॉडिफिकेशन करूंगा। अब देखो मॉडिफिकेशन देखो कैसे करूंगा। अब देखो मैं क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, सिंपल फॉन्ट साइज दे सकता हूँ, कितना हो सकता है, तो फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं 33 HP। अब देखो फॉन्ट साइज अगर जो देना है तो वो किस में देना पड़ता है, एसपी में। दो ही चीजें यूज होती हैं, डीपी एंड एसपी। तो अगर जो डीपी देना है तो किसके लिए क्या यूज होगा, मतलब विड्थ और हाइट के लिए डीपी यूज होता है, और फॉन्ट साइज के लिए एसपी यूज होता है। ध्यान रखना इस बात का। और ये भी डायरेक्टली ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा। उसके बाद फिर सिंपल यही चीज करना है कि क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो मॉडिफायर ही आएगा। और मॉडिफायर डॉट इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट क्या देनी है हमें, सबसे पहले हम दे देते हैं इसके अंदर फिल मैक्सिमम विड्थ, फिल मैक्सिमम विड्थ, ये मैक्सिमम विड्थ में हो जाए। और इसमें देंगे हम wrap कंटेंट विड्थ। अब देखो wrap कंटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने क्या होगा, बैलून कभी देखा है, बैलून देखा तो होगा ही, सॉरी। क्या होता है, बैलून कभी फुलाया होगा तो जितनी तुम हवा भरते हो क्या होता है, वो उतना ही फूल जाता है। तो बिल्कुल रैप कंटेंट उसी तरह वर्क करता है। जितनी भी तुम इसके अंदर चीजें डालोगे ये उतना ही बड़ा हो जाएगा, जितनी निकालोगे उतना ही छोटा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने क्या किया, माय नेम इज डॉग, तो इतना ही टेक्स्ट आना। रैप कंटेंट का मतलब है सिर्फ ये इतनी ही जगह घेरेगा, ठीक है, समझ रहे, ये इतनी जगह घेरेगा, और ये इतना है तो ये इतना ही जगह। तो रैप कंटेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, रैप कंटेंट दे दिया मैंने। अब रैप कंटेंट, ये इमेज चल रही है, सॉरी, एक मिनट में इसको नीचे कर देता हूँ जिससे थोड़ा सही दिखे। देखो अब मैंने क्या कर दिया, इसमें विड्थ भी दे दी। और देखो अब मैंने क्या बताया, मैंने इसको बताया तो नहीं है कहाँ पर होगा, रैप कंटेंट कहाँ से ले, तो मुझे लेना पड़ेगा AL। एक मिनट, मेरे को अलाइनमेंट देनी पड़ेगी इसके लिए। अलाइनमेंट क्या होती है, देखो मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ के चले, यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ के चले, तो मैं इसलिए अलाइनमेंट देता हूँ। अलाइनमेंट, एक मिनट, डॉट स्टार्ट, ठीक है, अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। अब देखो मैंने ये दे दिया। अब मुझे क्या देनी पड़ेगी, क्या दे दूं मैं, इसकी पैडिंग दे दूंगी, कितनी बोले, तो एक मिनट, पैडिंग बिल्कुल सेम, मॉडिफिकेशन में यही है कि कुछ भी करते रहो ये आराम से चलता रहेगा। अब देखो एक मिनट, पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग कितनी दे, कहाँ कहाँ से पैडिंग दूं, मैं दे देता हूँ इसमें स्टार्ट से दे देता हूँ, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो वहाँ की पैडिंग, जो भी स्टार्ट हो क्या ले, थोड़ा सा गैप छोड़ के चले। अलाइनमेंट स्टार्ट होता है, मैं बताता हूँ, देखो अलाइनमेंट स्टार्ट एंड, ये तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो अलाइनमेंट जो स्टार्ट होता है उसका मतलब होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो, लेफ्ट साइड से जो है वहां से स्टार्ट हो। अलाइनमेंट एंड होता है कि राइट साइड से स्टार्ट हो, ठीक है। और अलाइनमेंट टॉप क्या होता है कि जो ऊपर से मिला रहे, और अलाइनमेंट बॉटम क्या हो, जो नीचे से मिला रहे। बिल्कुल सिंपल सी बात यह है। और पैडिंग में क्यों दे रहा हूँ, मैं पैडिंग दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में क्या चले, थोड़ा गैप छोड़ के चले। तो कितना गैप छोड़ के चले, 16.dp का, ठीक है। और उसके बाद टॉप से भी दे देते हैं, टॉप से कितना दे, टॉप से भी सेम दे देते हैं, कितना है टॉप से करें, थोड़ा सा गैप चाहिए ना जिससे सुंदर लगे हमारी यूआई को। हम क्या बना रहे हैं, हम जेटपैक कंपोज का यूज इसलिए करें जिससे हमारी क्या लगे, यूआई सुंदर लगे। अब तक वैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। यही सिंपल चीज है, मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, और तो कुछ करना ही नहीं है हमें। एक मिनट, अब देखो एक मिनट देख लेते हैं इसको। अब देखते हैं क्या मैंने किया।
इमेज, एक मिनट। अब एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसा रहा। देखो बन गया हमारा ऐप। क्या किया मैंने, अगर देखो मैं इसको पैडिंग को हटा देता हूँ, 1 मिनट में पैडिंग हटा देता हूँ, ये क्या हुआ देखो। अगर मैं पैडिंग को हटाऊं, देखो क्या हुआ। देखो ये इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, मेरे को ये इमेज क्या चाहिए, नीचे चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे पैडिंग लगाई है। समझ गए। देखो हर एक चीज का एक बार दोबारा मतलब बता देता हूँ। इट्स नॉट वर्किंग। देखो मैंने ऊपर से देना है ना, मेरे को ऊपर से कितनी देनी है, 180, तो 180 डॉट डी। ठीक है, सिंपल सी चीज है। और ये हो गया ऐसे। अब देखो बिल्कुल एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ, ऐप तो हमारी फाइनली बन गई है। अभी अभी लेटर बना करके दिखा दूंगा, उससे पहले चल दिखाई देता हूँ। ठीक देखते हैं और कुछ। देखो अब देख लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, पैट इन्फॉर्मेशन ली। इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या डाले मैंने, टैग डाले माय नेम इज डॉग, और दूसरा टैग डाला मैंने कि आई एम 3 ईयर ओल्ड एंड आई लाइक टू बार्क। ठीक है, फोन साइज इनका रख दिया इतना कि इतना इतना इनका फोन साइज होना चाहिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल सोचिए। अब मुझे क्या करना, मॉडिफिकेशन करनी थी, तो मैंने मॉडिफायर लगाया। मॉडिफिकेशन मॉडिफायर सिंपल थिंग है। मैंने क्या कहा, फिल मैक्सिमम विड्थ। ये विड्थ मैक्सिमम क्यों कहा, कि मैंने यहाँ से देखो, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो पूरी मैक्सिमम विड्थ हो रही है, ये पूरा ऐसे ऐसे पूरी मैक्सिमम ले रहा है। ऐसे ही दोनों में मैक्सिमम विड्थ लगी है। ठीक है, कि दोनों में टेस्ट है, इन दोनों में मैक्सिमम विड्थ देखो पूरा ले रहा है ना। ठीक है, अब रैप कंटेंट मैंने क्यों लगाया, कि ये इतनी ही जगह घेरे। विड्थ में क्या बताइए, यहाँ तक विड्थ मान ले अपनी, तो ये इतनी ही जगह ले रहे, इस वजह से मैंने वेब कंटेंट लगाया। और ये क्या बताया कि कहाँ से स्टार्ट हो, इधर की साइड से स्टार्ट हो, लेफ्ट साइड से, इस वजह से ये लगाया। पैडिंग की क्यों लगाई मैंने, पैडिंग के लिए मैंने इस वजह से लगाया कि स्टार्ट हो इधर की साइड से, लेकिन 16 डीपी को छोड़ के, और ऊपर से भी क्या कर दे, 16 डीपी को छोड़ दे। 16 डीपी का स्पेस जो है छोड़ दे, इधर से भी स्पेस छोड़ दे। ठीक है, ये लगाया बिल्कुल सेम चीज। देखो ये अब ये समझ गए तुम, ये कैसे हुआ। अब देखो पैट इमेज मैंने लगाया, इस वजह से मैंने एक वेरिएबल लिया इमेज, और उसको पेंटर रिसोर्स की हेल्प से क्या लगा दिया, लोड करा दिया। और आईडी ले ली मैंने आर डॉट ड्राइबल डॉट, ये तो आर क्लास होती है जो रिसोर्स को बताती है, जो कि हमारी जो इमेज थी होती है आर डॉट ड्राइबल डॉट डॉग एडोप्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, एक फंक्शन लगाया, क्योंकि हमारी जो क्या हुआ, इमेज क्या हुई, लोड हुई है, सिर्फ अब तक प्रिंट नहीं हुई। तो मैंने एक फंक्शन लगाया इमेज के नाम से, जिसमें मैंने बताना पड़ा है, जो मैंने पेंटर रिसोर्स लिया उसमें पेंटर क्या है, वो हमारी इमेज थी जो यहाँ पे छप जाए। कॉन्टेंट इससे आप नल रख लो, वो नेक्स्ट सेशन में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है मॉडिफायर। क्या होता है मॉडिफायर, मैंने बता दिया कि मॉडिफाई करेगा हमारी उसको। तो मैंने क्या ले लिया, फुल मैक्सिमम हाइट ले ली, कि जो इसकी हाइट है वो पूरी हो गई थी, देखो मैक्सिमम हो गई थी। और क्या होता है, फिल मैक्सिमम विड्थ, और देखो मैक्सिमम विड्थ ने जो कि ये विड्थ जो है वो भी मैक्सिमम ले ली इमेज ने। फिर मैंने क्या कहा कि पैडिंग लगा दी, कि इतने ऊपर से 180 डीपीओ क्या कर दे, छोड़ दे। ठीक है, ऊपर से 180 डीपी के बाद छोड़ छोड़ दे स्पेस, अरे यहाँ से स्टार्ट हो, ऊपर से 180 डीपी का स्पेस छोड़ के। ठीक है, समझ गए इतना। और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था एडोप्ट नाम का, वो इस वजह से बनाया था कि जो हमारा है, ये बॉक्स को सिर्फ मैंने बताने के लिए बताया था तुम्हें, जिससे जो हमारी जो इमेज के ऊपर क्या आ जाए, इन्फॉर्मेशन छप जाए। तो बहुत अच्छी ऐप आज हमने आप बनाई, एक बेसिक यूआईएफ, जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया है, एक डॉग की इमेज को लगाना, और क्या लगाना, एक इन्फॉर्मेशन को लगाना। तो आपकी ऐप बन गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू बिल्ट योर फर्स्ट ऐप इन एंड्रॉइड स्टूडियो। So if you have any query, you can directly contact us on our social media handles like LinkedIn and on Instagram and many more. Okay. Wait a minute while emulator is building. Wait. Wait a minute. I'm audible? Yeah, Yes. you are audible. Wait a minute. ये बिल्ट नहीं हो रहा शायद, एक मिनट देख लेते। पिक्सल डॉट रनिंग फाइल नॉट केस दिस फाइल, ओ सॉरी। आई थिंक मेरा एमुलेटर वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली। तो करेगा।
एक मिनट देख लेते हैं, शायद ये डिवाइस मैनेजर। डाटा अब चलेगा। इज ऑलरेडी रनिंग, ये चलो कोई नहीं, बिल्कुल सेम ऐप यहीं पे दिखेगी। आई थिंक मेरा जो एमुलेटर वर्क नहीं कर रहा है। बिल्कुल सेम ऐप जो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, बिल्कुल सेम दिखेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू बिल्ट योर फर्स्ट ऐप इन एंड्रॉइड स्टूडियो। तो क्या करते हैं अब, क्या है, अब एक क्विज कराउंड होगा। और जो थिंग्स है वो बताई दी है अब हमारी लीड्स ने, ठीक है। तो आई थिंक ओमवीर एपीके Okay. बिल्ड करना भी बताते हैं। someone asking how to build APK. व्हाट, रिपीट अगेन APK रमन। files. APK files. APK, which we built in second one, क्योंकि this is a basic app, so that's why I'm not building at that time. Okay, हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे कैसे हम हमारी ऐप को जो है शेयर करना है, बिल्ड वगैरह करना है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। आप यहाँ से भी मतलब डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे, क्योंकि बेसिक ऐप है, इसका क्या डाउनलोड होगा, क्या ही करोगे। मतलब ओनली अच्छा है बनाना, अपने लैपटॉप में बनाना और देखना, बहुत अच्छी ऐप है इमेज और टेक्स्ट को लेके। लेकिन बिल्ड करना नेक्स्ट सेशन में हम सिखाएंगे, क्योंकि इसमें एक डाइस रोल ऐप बनाएंगे बहुत सुंदर सी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसमें, उससे पहले क्विज देकर जाना, ठीक है। सो नाउ आई विल लाइक टू हैंड ओवर टू आवर लीड्स। Yeah. Yes, sir. Omvi sir. So guys, how was वेट वेट, session? हाँ हाँ बिल्कुल, Yeah. ये Yes, sir. बहुत मैंडेटरी है। नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। Yeah. Okay. So guys, yeah, we are providing quiz link in some time. Yeah. So how was session? Is anyone wants to ask anything? They can raise their hand, and we will do their mic unmute. So is anyone Ruchika Kulkarni? I guess your hand is raised only. If anyone wants to ask anything, please raise your hand, and please do not left. Quiz is going to start in some time, and you can share your session feedback in chat box. Yeah, some are saying great session. Yeah, you can follow our speaker on LinkedIn, and also you can follow our accounts. Also, you can tag us all the photos. Our social media team is checking everything. So yes, sir. So sir is sharing रेडी फॉर quiz. सेशन, सॉरी रेडी फॉर क्विज। या जिन लोगों को भूख लगी वो लोग चले गए, बट इफ यू डू दिस, बिकॉज क्विज हमेशा लास्ट में रहेगा, सो लाइक इफ यू हैव पेशेंस सो यू विल गेट समथिंग, इफ यू डोंट हैव पेशेंस सो यू विल लूज. सो गाइस, दिस इज द Slido number, so go to slido.com. I will share link in chat box. If go to slido.com or simply type on Google Slido, so you will get first link slido.com and type that number. There is a tab joining as a participant, and write that there is a enter code here. So type this code 1638 1638 कमेंट सेक्शन में दे 372. दो। Yeah, I am एक मिनट, मैं लॉगिन कर लूँ। 1638372. So guys, type this code and press that arrow button. So it will ask your name. So give a good name, or I guess you directly join that if you are logged in. So how many members joined so far? I guess
Can we see, sir, how many members have joined? Yes. Great. Okay, so guys, have patience. And guys, so Shubh Gupta, Azim, Abhishek Pawar. We are having only 15. Oh, guys, we are right now, we are 190 above members. So everyone please join. It's a very simple step. First, go to a browser or type Slido, or else we have given link in chat box. Go to that link and use that hashtag number, that is 1638372. 1638372. Okay guys, so join fast, and till then take some photos and screenshots and posting on our social medias or your social medias and tagging us. So we are having Dhruv Gupta, Ankita Kumari, Ruturaj, only 91. Oh, guys, we are having 191 members. So join fast. If you are facing any issue, please type in chat box. And if you want to ask any doubt, you can raise your hand. Our speaker, Omvir sir, Raman Verma sir, and Omvir Pawar sir, all three speakers are there. So guys, please join fast. 103, yeah. Divyanand join. Raman Verma sir also shared his LinkedIn profile, and I have also shared our social media handles. So kindly go through that and follow us everywhere. And if you are posting on Instagram, tag us gdsc.mitaoe, GDSC BVP Pune. So 1116. Guys, we are 150 above members. So जैसे ही 150 पे हुआ, we will start our quiz. So guys, please be quick. Those who didn't join, please join, because those who will be the winner of this quiz, they will get some amazing prize. And if you join all 4 days, you will get certificate. So guys, we are 133, close to 150. Where is quiz? I go to this slido.com URL, or click on this URL slido.com. I have put it in chat. So slido.com. So when you go there, you will see one tab, enter code here. So type this 1638372. So this is our code. Type this 7-digit code. So we are having 140, like let's do it 150, then we will start. So guys, do 6 more. We are having 186 member, only just 146 has joined. Okay, so someone is saying start. भूख लगी है. Okay, so I guess Omvir sir, we should start, or what do you think? Okay, I will start. So first question is, which of the following variable declaration is valid? ये तो बहुत इजी है, फटाफट दो आंसर. देख लेते हैं.
35% इस पे गया है, किस पे, थर्ड वाले पे, और 36 गया लास्ट वाले पे। तो देख लेते हैं व्हाट्स द करेक्ट आंसर। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ सी द लीडर बोर्ड। सो साहिल Nehre is leading up, and second leading up winner is Rishabh Anand, and third is Narayan. Okay, so keep going. Which of the following is not a data type in Kotlin? So it's also too easy. Okay, तो 69% लोगों ने बी ऑप्शन डेसिमल को चूज किया है। देखते हैं व्हाट्स द करेक्ट आंसर। So congratulations, second one is the correct. So Dhruv S. Kumar is leading here, and second one is Manu Kumar, third one is Vikas Gupta, Sahil and Pranav. So stay tuned. So third one is in Kotlin, the entry point of the program is, it's too easy question, Pius explained it very well. तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो मुझे पता ही था 86% बिल्कुल सही आंसर दिया है, विच इज मेन फंक्शन। और सो लीडिंग बोर्ड पर है वापस से ध्रुव एस कुमार, देन आस्था सिंह, देन साहिल, विकास गुप्ता। ग्रेट, ध्रुव एस कुमार। सो थर्ड वन इज, सॉरी फोर्थ वन इज विच, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ वर्चुअल डिवाइस और एमुलेटर इन एंड्रॉइड स्टूडियो? ये इजी है बहुत ज्यादा। बहुत सही, 71% लोगों ने सी आंसर को चूज किया। देखते हैं व्हाट्स द करेक्ट आंसर। तो C is the correct answer to test your app on a device without having the physical device. क्योंकि जो हम क्या करते हैं, हमारी ऐप है उसको डायरेक्टली हम एमुलेटर में रन कर लेते हैं, वर्चुअल डिवाइस में रन कर लेते हैं जो हम बनाते हैं वहां पर। तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा लीडर बोर्ड के वापस ध्रुव एस कुमार, देन विकास गुप्ता, देन साहिल। ग्रेट गाइस। फिर फिफ्थ वन इज ए कंपोज फंक्शन रिक्वायर्स द कंपोजेबल एनोटेशन। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, मैंने खुद अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। ग्रेट गाइस, मुझे यही उम्मीद थी आपसे। तो ट्रू इज द करेक्ट आंसर। देन ध्रुव एस, देन विकास गुप्ता, साहिल एंड आस्था सिंह इज लीडिंग आवर लीडर बोर्ड। एंड देन पैडिंग इन एन एग्जांपल ऑफ, हम पैडिंग किसके अंदर लगा रहे थे, सोचो और लगाओ। और 23 इन एट्रीब्यूट और 21 ने कंपोजेबल। तो देख लेते हैं मॉडिफाई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने बताया था पैडिंग किसके अंदर लगी थी, हम मॉडिफाई तो कर रहे हैं किसी चीज को, तभी तो इसके अंदर पैडिंग लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। देन नरेश, अरपाद एंड ध्रुव एस कुमार, आस्था सिंह, विकास गुप्ता एंड साहिल, the leaderboard. And most important question, what is Jetpack Compose? एंड मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था ये आपका आंसर। बिल्कुल, तो देख लेते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। सो जस्ट वेट, 4 3 2 1। ग्रेट, 85% ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, विच इज ए मॉडर्न टूल किट फॉर बिल्डिंग एंड्रॉइड यूआई, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फिर देख लेते हैं लीडर बोर्ड पर कौन है। नरेश वापस, फिर विकास गुप्ता, फिर साहिल, फिर ध्रुव एस कुमार, लीडर बोर्ड। So 8th question is, what is the tool window for importing, creating, managing and using resource in your app?
बहुत अच्छे तरह से, तो ये भी बड़ा इजी सा सवाल है। तो 62% पीपल आर करेक्ट बिकॉज रिसोर्स मैनेजर, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैंने इंपोर्ट कहाँ से, देखो पहली वर्ड है इंपोर्ट कहाँ से किया था, ठीक है, मैंने इमेज कहाँ पे इंपोर्ट की थी, रिसोर्स मैनेजर से ही तो इंपोर्ट कराई थी, बस इस वजह से यही आंसर है इसका। और मैंने चिल्ला के बताया था, क्रिएट भी करता है मैनेज भी करता है, ठीक है। ओके, देन नरेश इज ऑल्सो लीडिंग आवर लीडर बोर्ड, देन विकास गुप्ता, देन साहिल, एंड देन ध्रुव एस कुमार, देन अभीर। Great, Naresh. Then the last question is, which function is used to load a drawable image resource? ये तो मैंने कई बार बताया, देखते हैं कितने लोग सुन रहे थे। ओहो, देखते हैं। सी ऑप्शन लगाया है काफी सारे लोगों ने 46%, एंड बी ऑप्शन लगाया 40% लोगों ने, तो 46 वाले रॉन्ग है और 40 वाले करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था जो इमेज पेंटर रिसोर्स है वो क्या करता है, लोड ही कराता है, प्रिंट पेंट नहीं कराता, सिर्फ लोड कराता है, ठीक है। और उसके बाद होता है, वापस देख लेते हैं, नरेश इज ऑल्सो लीडिंग इज, एंड विकास गुप्ता, देन साहिल, देन ध्रुव एस कुमार, देन अभीर। सो ग्रेट नरेश। सो लास्ट क्वेश्चन, which class is an automatically generated class by Android that contains the IDs of all resources in the project? Again, 37% people are again wrong. Because it's R class. याद है ना हमने क्या किया था, जब इमेज को लोड कराते वो लगाए थे r.drawable.image का नेम, तो मैंने R क्या बताया था, जो R क्लास होती है क्या करते, जो आईडी थी जो, ठीक है, तो ये क्या कर रही थी, जो हमारे रिसोर्स है इमेज को उठा रही थी, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगी, R क्लास, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे लीडर बोर्ड में फाइनल कौन है। तो नरेश, कॉन्ग्रेचुलेशन। I guess your screen is stuck. Okay, so our winners are Naresh Apat, 10 out of 10 all the questions. Then Vikas Gupta, then Shashank Dhaiya, then Abir, then Rishikesh Prakhand. So guys, I have given you access to start your video. So please start your video. So we also wanna see. You are not audible, Omvir sir. Wait. Yeah, now you are audible. Yeah. Yeah. So guys, एक ग्रुप फोटो हो जाए, देन वी विल वाइंड अप। लाइक अभी हम वर्चुअल तो मिल नहीं सकते, आई डोंट हैव कैमरा, व्हाई सो, सभी के फोन में कैमरा होता है। ओमवीर सर, यू वर सेइंग समथिंग। हेलो हेलो या विकास गुप्ता, यू वांट टू से एनीथिंग? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? रमन सर, पीयूष सर? Yeah, Yeah, you are you are audible. Yes. Okay, so you were saying something or okay, so Abhi sir, yeah, Piyush sir. आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, कोई फीडबैक देगा? हाँ, विकास गुप्ता का हैंड रेज है, आपका माइक अलाउ कर, आप माइक का परमिशन दिया, यू कैन अनम्यूट योर माइक। शशांक कुमार, या यू कैन से।
या गाइस सब लोग अपना वीडियो चालू कर ले, सबका फोटो लेते, ग्रुप Yes, फोटो sir. एंड ऑल. या I'm audible, शशांक. sir. This या was awesome, sir. Like मतलब बहुत अच्छा था. Quiz was like really good, sir. बहुत मतलब मुझे काफी कुछ मतलब मैं सीख ही रहा हूँ जेट पर कंपोज. अभी स्टार्ट ही किया है, लगभग 1 मंथ हुआ. सारे प्रोजेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ उसमें जेट पर कंपोज में. लाइक उसके हिसाब से बहुत सही लगा मुझे. मैंने बहुत सारी नई चीज़ें मैंने देखी अभी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर. थैंक यू फॉर दिस गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. आई एम नॉट फ्रॉम लाइक MIT कॉलेज, बट आई एम फ्रॉम आउटसाइड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बट आई जस्ट जॉइन फ्रॉम लिंक्डइन. या ओके फाइन, सुपर कूल. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. Anyone wants to say anything? No. So we all are having our speakers: Omveer Pawar sir, Piyush Yadav sir, Raman Verma sir. So Sir, I have a let's. one doubt, sir. Like, can I ask? Yeah. सर एवरी टाइम Sure. लाइक जो लाइक स्टूडेंट्स है ना, मतलब कहते हैं लाइक डेवलपमेंट के तरह थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव करो. मतलब ये बहुत ज़्यादा, तो मैं जब भी मतलब कॉलेज में भी यही चलता रहता है. मतलब ये मतलब कॉमन क्वेश्चन है कि मतलब डेवलपमेंट में मुझे डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है. मैं कोडिंग करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं लीड कोड में 200-300 क्वेश्चन किए हैं, बट एक कॉन्फिडेंस जो आता है ना, मेरा डेवलपमेंट ज़्यादा है. तो मैं मतलब क्या मैं कभी ऐसा से कर पाऊंगा लाइक डेवलपमेंट के थ्रू सारी चीज़ें, क्योंकि मतलब ठीक है कोडिंग आती है, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग सॉल्व नहीं आती, बट एक टफ क्वेश्चन या फिर कॉम्पिटेटिव सीपी टाइप वाली कोडिंग नहीं आती. नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ आती हैं. तो ये डाउट मतलब ये मेरे को है. दोनों इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी जगह पर. देखो मैं बिल्कुल ऑलराइट बताता हूँ. कंपनीज में जाओगे, किसी भी ज्वाइन करोगे, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है. और कंपनी में ज्वाइन करने के लिए सीपी भी चाहिए. तो दोनों अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है. तो मेरे So, like- अकॉर्डिंग अगर जो आपको डेवलपमेंट अच्छी लगती है तो आप डेवलपमेंट पे ही ज्यादा फोकस करो. और कोडिंग राउंड में मतलब जिस टाइम जब वो आपकी स्किल्स ज्यादा देख लेंगे ना, तो आपकी जो सीपी है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. Okay, और थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह बढ़ाओ, कुछ इंटर्नशिप वगैरह कहीं से जहां से भी हो सके, Okay. जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें, और बात बहुत सही रहेगा. Yes. और अगर जो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस. Okay, वी sir. विल Thank you, sir. डेफिनेटली हेल्प यू. ओके. Thank you, sir. Thank you. या वत्सल कंटिन्यू. या हेलो. या सो यहाँ पे अभी फोटो खींच रहे हैं, तो लाइक सभी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं: पीयूष यादव, सुमित जहा, केशव, कृतिका, प्रभात. एवरीवन इज विजिबल. सो लेट्स क्लिक वन फोटो. हाँ, जिसको भूख लगी है बस वाइंड अप कर रहे हैं. सो अस्मित, आर यू रेडी? लेट्स क्लिक वन फोटो. Yep, sure. Yeah. So guys, yeah, you can also take and keep and share it in a group. So yeah, so it is done, I guess. You can go in together mode. So guys, we wanted to keep it offline, but our speaker are very far from here, so like it will be very difficult for them. So that's why it's virtual session. So if you really enjoy this session, so kindly share feedback on your social medias by tagging us, or kindly share it in chat box or in our WhatsApp group. So we are looking forward everything, and also you will receive certificate if you attend all 4 days. So yeah, thank you. Yeah, Smith, you want to say anything? Well, I hope you enjoyed this session, and we are hoping you will join tomorrow. And yeah, progress with the app development, and maybe by the end of the session, you will be able to create something great with Jetpack Compose and share it with the community. Yeah, so first of all, I would like to thank Omveer Pawar sir, Piyush Yadav sir, Raman Verma sir for their precious time. This is our day one, and we got this much response. So I hope you will join like this only,
And if you have any doubt, so you can ask in group, and all the resources will be shared in group. Our speakers are putting too much efforts, like they are busy, but also they have given us chance. So we are very thankful to them. So thank you. Yeah. So let's take signing off. So you can unmute your mic. I have given access to all, and we can say tata, bye bye, or anything if you want to say. So bye guys, bye. You can unmute your mic. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye sir. Bye Bye guys. Bye guys. Bye bye. It was a very interesting session, really. Thank you, sir. Bye bye Aditya. Bye Jaydeep. Yeah. Bye. 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 It's okay. बंद